Hello. Hello, sir. Good evening and Happy New Year. Happy New Year, everyone. Happy New Year, sir. Happy New Year, sir. Happy New Year. सबको हैप्पी पीपीटी विजिबल है आपको? Yes, sir. ओके. सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट, बताएगा कोई क्या डिस्कस कर रहे थे हम लोग? सर इरिगेशन तो हो गया था. हाँ, ये सर हो गया था पीएम कुसुम. ये क्रॉपिंग पैटर्न हमने देख लिए थे. कुछ सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न, टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न, ये आज अपलोड हो जाएगा तो आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा. मेजर क्रॉप्स इन इंडिया. पीडीएस हो गया था. पीडीएस चल रहा था ना. ये मैप आपको देखने हैं ना उसमें, एटलस में. Public distribution system in India. The objectives of PDS, we know that low income group must get the food grains at affordable price. Importance of PDS because the huge population in India is living below poverty line. Almost 1/4 of people in India are living in abject poverty. So they need the affordable food commodities. Otherwise, they would starve and die, which would be really shame if people in India will die because of starvation. तो भूख से नहीं मरना चाहिए कोई. This is the system. Like farmers will be insured MSP by the government, and the Food Corporation of India is the government's agent who will buy the food grains from the farmers at the MSP, which is already pre-decided. Just before the sowing season, the government of India, or you can say more, अगर आप थोड़ा और डीप जाएंगे तो कहेंगे कि कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स will announce the minimum support price for the crops. So from farmers, the central agency, that is Food Corporation of India, will buy the food crops at MSP. That those food grains will be given to the state governments. State governments will allot those food grains to the fair price shops, and they will distribute to the beneficiaries or those people who are eligible under the Food Security Act. Okay, and this price is the central issue price. So minimum support price is the price at which the government will buy from the farmers, which is little higher, and then central government will provide that to the at the central issue price to the state government, and at the similar price. Usually states do allot the ration to the beneficiaries at the central issue price only, but sometimes state government changes it sometimes, and there is a limitation. They can only increase just 50 basic, or you can say 0.5 rupees only over the central issue price. They cannot go beyond that. So this is the difference between the MSP and the central issue price. Then we discuss some of this mechanism, that here we can see the 0.5 rupees per kg over the central issue price only they can increase, not more than that. So MSP and CIP should be clear in your mind. Then Food Corporation of India is a body which came into existence in 1960s because the self-sufficiency came into picture because of the Green Revolution in India. In Green Revolution, government introduced the machinery along with the high yield variety seeds. So there was an increase in the production of the food crops in India. So after that ही फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की जरूरत पड़ी, बिकॉज उसके पहले तो
इंडिया को इंपोर्ट करना पड़ रहा था फूड ग्रेन्स, सब सेल्फ सफिशिएंसी थी नहीं. बट आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया, सेल्फ सफिशिएंसी आ गई और हम सरप्लस में आ गए. देन फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का काम आया. देन एमएसपी का मैकेनिज्म आपको पता है, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अनाउंसेस इट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द Commission for Agriculture Cost and Price. Okay, Commission for Agriculture Cost and Price is the body which decides the MSP. Okay, which decides the MSP, then recommend that MSP to the Cabinet Committee on Economic Affairs. Then it will announce it. Okay, it can make changes also, but it can also resend to the CACP that you need to reconsider it. But the ultimate decision will be taken by the Cabinet Committee of Economic Affairs. Okay, this is a very powerful committee because it comprises of I think its head is the Prime Minister of India. So 3-4 like Home Minister, Minister of Finance, and some other like ministers are also there. So Cabinet Committee of Economic Affairs announces MSP. So keep in mind the announcement will be made by CCEA and ultimate decision will be taken by this, but recommendation is given by CACP. How MSP is determined, we discussed that these are some of the factors which are considered by the CACP while deciding the minimum support price of the crops. Okay, so demand and supply, cost of production, like how much cost will incur in the production of that particular crop, what is the demand of that crop and supply of that crop in the market, and the intercrop price parity they will also check. Terms of trade between agriculture and non-agriculture commodities, they will also check. They will try to make a parity in the market. Okay, disparity would ultimately not benefit anybody. So a minimum 50% as the margin over cost of production. Okay, they will take 50% of the margin. If the cost of production is 100, they will go with the 150 rupees. Likely implication of MSP on consumer of that product, definitely. Okay, like if MSP is very high, then farmers will get benefited, but ultimately there is a possibility that those people who want to buy it might face problem. So government need to take care of both the section, the farmers on the one hand and the consumer on the other hand, because food security is also the target. Taking care of farmers and the agriculture is one of the target, and on the another end there are consumers also. So affordability is also the thing which government need to ensure. So there is a perfect balance between the requirement of both the section, consumer as well as the farmers. Okay, so they will also take into consideration the implication on the consumer. Okay, if MSP will be very high, then farmers will be happy that we are getting good MSP. But on the other hand, the consumer will not able to buy that. So that it will reduce the affordability, which doesn't make sense. So this is the balancing factor. These are some of the important issues they take into consideration while deciding the MSP, the CACP. How are MSPs determined? We know CACP decides, and there are three formulae. One is the A2 plus FL, and C2. And A2 is the there are two kind of costs: the explicit cost and the implicit cost. Explicit cost is the visible cost. Okay, like if the farmer is going to market and buying some input, so that is the explicit cost because farmer is paying the money. So that's the explicit cost involved. Now the implicit cost is the hidden cost or hidden efforts, you can say, like when they are working hard in the in the daylight, all the family members, that is the hidden thing, because labor is kind of implicit cost. So explicit cost is there, and implicit cost, which is unpaid cost, is also there. So while deciding the CACP, the formula one is the A2. A2 is the all cash and kind expenses incurred by farmers, means this is the explicit cost. So under A2 formula, the CACP only consider the explicit cost. Okay, only explicit cost. Okay, like seeds input, fertilizer input, chemical, hired labors, fuel, irrigation. These are hired labors. Okay, family labors are not getting anything. Okay, one of the kith or kin is working in the field. Okay, they are not getting anything. Like they are not paid remuneration by the farmers. Okay,
family members are not paid remuneration. So that is the implicit cost. If some family member is working and not getting anything in return, that's the implicit cost. Okay. Explicit is the hired labor. If you are hiring some labor, means you are paying that. That's the explicit cost. So hiring labor is the explicit cost. So A2 is one of the thing. Oh, this is the one of the formula. Now second formula is the A2 plus FL. A2 plus FL is the family labor, means both the explicit and the implicit cost are taken into consideration. Okay, this would be your A2 plus FL. The third is the C2. C2 is like A2 plus FL you are including along with the revenue foregone on own land and fixed capital assets. Okay, this is very higher because you have capital assets like in this, like for example, I'm a farmer and I'm practicing agriculture. Now I bought almost 1,000 rupees. I purchased 1,000 rupees inputs. Okay, I spent almost 1,000 rupees on inputs. So 1,000 rupees is the explicit cost. Now I'm considering that 500 rupees is the implicit cost, which is the for the labor. Okay, फैमिली लेबर हमने किया है वो 500 रुपए उसका कॉस्ट हो गया. So ultimately according to A2 only explicit cost means only 1,000 rupees because that is paid by you on the inputs. Now A2 plus FL is 500, you are adding more. So A2 plus FL आपने 500 और ऐड किया 1500 हो जाएगा यहाँ पे. C2 is saying include A2 plus FL means 1500 तो ऐड किए ही along with some other things are revenue foregone on own land and fixed capital asset. Now अगर मेरे पास कोई फार्म मशीनरी पहले से रखी हुई है तो मैं उसके ऊपर उस एसेट के ऊपर इंटरेस्ट भी क्या करूंगा कैलकुलेट करके उसके अंदर ऐड करूंगा. ठीक है, बिकॉज वो अल्टीमेटली डेप्रिशिएट हो रहा है. कोई भी अगर आपके पास सामान रखा रहता है तो आपके पास 1,000 रुपए है, 1,000 रुपए अगर आपने इन्वेस्ट कर दिए तो इन्वेस्टमेंट में आपको पता है कि आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है. ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल आपने अगर 1,000 रुपए का कोई एक फॉर एग्जांपल आपने 1,000 रुपए का कुछ लैपटॉप खरीद लिया, वो लैपटॉप का जो प्राइस है वो डेफिनेटली डे बाय डे क्या हो रहा है, डिमिनिश हो रहा है. डिमिनिश क्यों हो रहा है? बिकॉज वो टेक्नोलॉजी थोड़े दिनों बाद आउटडेटेड हो जाएगी और अल्टीमेटली उसका प्राइस क्या होगा, डेप्रिशिएट होगा. सिमिलरली फिक्स्ड जो कमोडिटीज कैपिटल कमोडिटीज होती है जो लॉन्ग टाइम तक रखी रहेगी उनकी वैल्यू धीरे धीरे क्या रहती है, डिमिनिश होती है. तो वो यहाँ कह रहा है कि जो कैपिटल एसेट पे जो इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है उस इंटरेस्ट को भी आपको क्या करना है, उसमें ऐड करना है. ठीक है, तो अगर आप ऐसा करोगे, जो इंटरेस्ट पे ऐड करोगे या फिर जो लैंड है उस लैंड को, अगर आपका खुद का भी लैंड है तो उस पर आप क्या करोगे, उसका रेंट भी उसमें कंसिडर करके चलोगे कि अगर खुद का लैंड नहीं होता तो रेंट होता ना, तो उस रेंट को आप कंसिडर करके चलो. तो C2 जो है वो काफी हाई हो जाती है एज कम्पेयर टू A2 FL एंड A2. A2 तो सबसे कम है. तो A2 वाला फॉर्मूला इंडिया में नहीं यूज होता. इंडिया में करंटली यूज हो रहा है जो CACP लेता है, दैट इज A2 plus FL. कीप इन माइंड, ये याद रखना A2 plus FL. तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाता है तो स्टेटमेंट बेस की both the explicit and implicit cost is taken into consideration while deciding this. इनमें से कोई एक आध फैक्टर डाल सकते हैं कि डिसीजन के टाइम पे इनमें से क्या कंसीडर किया जाता है. ये 50% वाला भी है. तो C2 में फिर आपको वो चीजें भी लेनी है जो कैपिटल एसेट पे इंटरेस्ट जा रहा है या ओन लैंड पे रेंट जा रहा है, ये सारी चीजें. तो C2 की डिमांड कर रहे हैं जो फार्मिंग कम्युनिटी है, वो कहते हैं कि C2 के हिसाब से डिसाइड होना चाहिए. इफ यू विल गो विद द C2 देन it would have a additional burden on the public exchequer. Definitely public exchequer मतलब वही गवर्नमेंट के जो फिस्कल मैनेजमेंट है उस पे एक एडिशनल बर्डन आएगा, पहली चीज. ठीक है, तो फार्मिंग कम्युनिटी के लिए अच्छा है बट गवर्नमेंट इस पर नहीं जा रही है अभी. ठीक है, तो एक रिम्यूनरेटिव और एक बेटर इनकम बन पाएगी किसके लिए, फार्मर्स के लिए. तो C2 की डिमांड करते हैं बट वी आर गोइंग विद A2 plus FL. ओके, ये समझ में आ गया ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है यहाँ तक. हेलो सर. यस, मतलब सब्जी लेते कैसे है किसान से? मैंने तो कभी देखा नहीं सब्जी मंडी पे. एक मिनट, क्या कह रहे हैं, फिर से कहिए. मैं बोल रहा हूँ किसान से MSP वाले सब्जी लेते कैसे है, मतलब कहाँ से लेते हैं, ये लोग रहते कहाँ पे? सब्जी मंडी पे तो मैंने कभी देखा नहीं. नहीं, ये सब्जियों के लिए नहीं है ना. तो किस चीज के लिए? दिस इज नॉट फॉर वेजिटेबल्स. ये तो लिखी है, ये देखिए, ये अगर नेक्स्ट स्लाइड में अभी बता रहा हूँ. ठीक है. ओके, ये जो क्रॉप्स है ना, ये क्रॉप्स कौन सी है जिन पे MSP डिसाइड होती है वो भी बता रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आओ. ठीक है,
नेक्स्ट स्लाइड में देखो, ये देखो, द गवर्नमेंट फिक्सेस एमएसपी ऑफ 22 मैंडेटेड एग्रीकल्चर क्रॉप्स। ये वेजिटेबल्स के लिए नहीं है और फ्रूट्स के लिए नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। गवर्नमेंट एमएसपी डिसाइड कर रही है 22 क्रॉप्स के लिए, ठीक। यस, रिपीट कर दीजिए हेलो, क्या कह रहे हैं? सर, C2 रिपीट कर दीजिए। इसको C2 रिपीट करना है? ओके, C2 देखिए, C2 क्या होता है ना C2 में आपने, सिंपल सी बात है, अगर आपके पास कोई कैपिटल एसेट रखा हुआ रहता है, आप याद करो, हमने बहुत, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने क्या बोलते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देखे थे, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देखे थे। कोई बताएगा क्या क्या थे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? थे ना 4? यस, लैंड, सर लेबर, लैंड, लेबर, कैपिटल, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर, ओके। उसमें इन चारों के साथ एक कॉस्ट इन्वॉल्व थी, आपको पता है। लैंड के साथ रेंट इन्वॉल्व था, लेबर के साथ वेजेस इन्वॉल्व थे, वेजेस, कैपिटल के साथ क्या इन्वॉल्व था? प्रॉफिट, कैपिटल के साथ एंड तो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, ओके। इंटरेस्ट, तो कैपिटल पे इंटरेस्ट क्यों जाता है, ये हमने देखा था, पहले डिस्कस किया था, फिर से बता दे। देखो, आपके पास अभी 100 रुपए है, उस 100 रुपए में अगर आप उस 100 रुपए को अपने घर पे अपने पास रखे रहोगे तो डजंट मेक सेंस, वो 100 के 100 ही रहेंगे, ठीक है। उस 100 रुपए को अगर आप बैंक में ले जाके रख देंगे तो आपको एक जो नॉमिनल जो एक इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा, ठीक है। अगर आप उसको बड़े किसी एफडी में इन्वेस्ट करोगे तो आपको ज्यादा मिलेगा, बिकॉज वो क्या है, टाइम लाइबिलिटी रहेगी, टाइम लाइबिलिटी पे इंटरेस्ट क्या रहता है, ज्यादा रहता है। याद है? याद आ रहा है? थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला। टाइम लाइबिलिटी पे जो इंटरेस्ट रहता है वो ज्यादा रहता है, और जो डिमांड लाइबिलिटी है, जो अगर आप इसमें सेविंग्स अकाउंट में या करंट अकाउंट में डाल दोगे तो इंटरेस्ट कम मिलेगा। बट पॉइंट ये है, फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आपके पास पैसा अगर अपने पास रहेगा तो वो ग्रो नहीं करेगा, बट अगर आप उसको इन्वेस्ट कर दोगे कहीं पे, अगर आपने बैंक में रखा है तो वो भी इन्वेस्टमेंट ही एक तरीके का, दैट्स अ सेफ इन्वेस्टमेंट, कि बैंक में सेफ रहेगा, बट आपको पैसा मिल रहा है, उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये इट्स ए काइंड ऑफ कैपिटल, ठीक है। ये आपका एक फिक्स कैपिटल है, इस कैपिटल को आपने इन्वेस्ट कर दिया तो आपको उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। अब इस 100 रुपए में अगर आपने कोई इंडस्ट्री स्टार्ट करनी होती है तो आप जो इंडस्ट्रीज के लिए इनपुट लाते हो, मशीनरी लेकर आते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में हूँ, कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट करने के लिए मुझे लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, एंटरप्रेन्योर चाहिए, ठीक है। इसमें मैं कैपिटल में जब इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि मेरे को बोर्ड लगाना है, मेरे को मार्कर्स खरीदने हैं, मेरे को इंक लेकर आना है, मेरे को वुडन ब्लॉक लगाना है, मेरे को पोडियम लगाना है, मेरे को माइक्स चाहिए, मेरे को अदर चीजें चाहिए। तो ये जो सारा मैं एक्सपेंडिचर कर रहा हूँ, ये सब क्या है, मैंने 10 लाख रुपए का सामान लेके आ गया, 10 लाख रुपए मेरे पास थे, उस 10 लाख रुपए का मैंने सामान लेके आ गया, ठीक है। जब मैं सामान लेके आ गया तो वो सारा मेरा कैपिटल एसेट हो गया, मैंने मनी खर्च कर दिया, कैपिटल एसेट हो गया। ये कैपिटल एसेट, क्योंकि ये जो बोर्ड है जिसपे मैं लिख रहा हूँ, इस बोर्ड की वैल्यू जो होगी वो डे बाय डे क्या हो रही है, डिमिनिश हो रही है। इसका मतलब ये जो बोर्ड है, ये धीरे धीरे इसकी वैल्यू क्या करेगी, डिमिनिश होगी। बट ये बोर्ड जो है वो मुझे कहीं ना कहीं प्रॉफिट जनरेट करवा के देगा, दे रहा है ना। तो आपका जो कैपिटल एसेट होता है उस पे हमेशा एक इंटरेस्ट क्या रहता है, इन्वॉल्व रहता है। बिकॉज अगर आपने इससे इससे ये जो बोर्ड लगाया आपने, इस पैसे से बोर्ड जो खरीदा, इस बोर्ड को खरीदने का क्या पर्पस था, इस बोर्ड, ये बोर्ड आपको रिटर्न ला के देगा वापस बिजनेस में। क्यों? क्योंकि बोर्ड लगाया तब तो आप पढ़ा पा रहे, इसकी जरूरत थी ना, ये इनपुट है। तो इनपुट आपने उस पैसे से खरीदा, वो आपका कैपिटल बना, और ये कैपिटल आपको रिटर्न ला के दे रहा है वापस, गॉट इट। बट इसकी वैल्यू डे बाय डे क्या हो रही है, डिमिनिश हो रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये, इसकी वैल्यू बिल्कुल क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। दैट, तो ये जो डिमिनिश हो रही है, ये फार्मिंग में भी होता है। अगर आप फार्म मशीनरी आपके पास है अवेलेबल, तो उस फार्म मशीनरी में अगर आपके पास नहीं है तो आप रेंट लाओगे तो वो अलग फैक्टर में आ जाएगा। बट आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, इसका मतलब आपने, आपके पास कैपिटल है, उस कैपिटल का भी डे बाय डे क्या हो रहा है, डिमिनिशिंग हो रही है। तो वाइल डिसाइडिंग द एमएसपी, आप ये जो कैपिटल का डिमिनिश हो रहा है, डिमिनिश इसकी वैल्यू हो रही है ना, C2 के अंदर उन डिमिनिश होने वाली वैल्यू को भी कंसिडर किया जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जो मशीनरी, जो कैपिटल आप ऑलरेडी यूज कर रहे हो, आपके पास अवेलेबल, उसकी जो वैल्यू डिमिनिश हो रही है ना, उसको भी आप C2 में क्या करो, कंसिडर करो, ठीक है। बिकॉज वो भी तो पार्ट है उस पूरे एग्रीकल्चर प्रोसेस का। तो अगर आप कैपिटल पे जो एक फिक्स्ड जो उसकी वैल्यू डिमिनिश हो रही है, जो इंटरेस्ट उस पर क्रिएट होगा, उसको अगर आप इन्वॉल्व करते हो तो दैट विल बिकम C2। तो C2 में एडिशनल और कुछ ऐड कर दोगे आप A2 और FL में। ये A2 FL जो दिख रहा है, इसमें आप कुछ और ऐड करोगे जो इंटरेस्ट वाली चीज है,
ठीक है, दैट विल बी C2। ठीक है, तो C2 में उनको भी आपको ऐड करना है। जो कैपिटल पे आपको क्या लग रहा है, फिक्स कैपिटल एसेट पे इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है। ठीक है, यस सर। इंटरेस्ट एक उसको प्रेजेंट करने का तरीका है। कैपिटल हमेशा इंटरेस्ट जो अट्रैक्ट करता है। ठीक है, अब वो अल्टीमेटली आपने एक्सपेंडिचर किया, तो एक्सपेंडिचर आपको रिटर्न लाके दे रहा है ना, बिकॉज आपकी कोचिंग चल रही है, बच्चे आ रहे हैं, आपको अर्निंग हो रही है, और आपको कहीं ना कहीं वो जो एक एसेट है आपका, वो आपको क्या दे रहा है, रिटर्न दे रहे हैं। यस, चले। यस सर। अब देखो, अब ये जो अभी क्वेश्चन पूछ रहे थे कि ये एमएसपी पे कहाँ क्या हो रहा है, देखो थोड़ा सा होलिस्टिकली खोलो दिमाग को। एमएसपी का जो काम है वो बहुत लिमिटेड है। लिमिटेड मतलब आपकी फूड क्रॉप्स पे ये जा रहा है, या आपकी वेजिटेबल्स और इन पे नहीं जाता। अब किन किन फूड क्रॉप्स की एमएसपी होती है और गवर्नमेंट उनका प्रोक्यूरमेंट करती है, उसको देखो पहले। उसको देखो कि द गवर्नमेंट फिक्सेस एमएसपी ऑफ 22 मैंडेटेड एग्रीकल्चर क्रॉप्स। तो सारी लोगों का, सारी चीजों का, जैसे मतलब मैं भिंडी बैगन सबका एमएसपी नहीं डिसाइड कर रही है गवर्नमेंट। ठीक है, सिर्फ 22 मैंडेटेड एग्रीकल्चर क्रॉप्स है, उनका ही सिर्फ क्या कर रहे हैं, एमएसपी डिसाइड कर रहे हैं 22 क्रॉप्स का। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ सीएससीपी। सीएससीपी हमने देखा था रिकमेंड करता है। ठीक है, अब द 22 मैंडेटेड क्रॉप्स इंक्लूड 14 खरीफ क्रॉप्स। हमने खरीफ और रबी देखा था। ठीक है, खरीफ क्रॉप्स में पहले खरीफ क्रॉप्स कब आएगी, ये जून जुलाई के टाइम पे उनका सोइंग आएगा, फिर नवंबर दिसंबर में उनका क्या आ जाएगा, हार्वेस्टिंग आ जाएगा अक्टूबर नवंबर में। ठीक है, तो 14 खरीफ क्रॉप्स जो है उन पे एमएसपी डिसाइड हो रही है। मतलब वो वाली चीजें अगर फार्मर प्रोड्यूस कर रहा है तो उसकी एमएसपी है, और अगर उससे उस एमएसपी से बिलो अगर कोई खरीद रहा है तो गवर्नमेंट उसको उसको बेचने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट उससे क्या करेगी, खरीद लेगी। एमएसपी का बेसिक सिग्निफिकेंस समझ आ रहा है ना आपको। एमएसपी का सिग्निफिकेंस क्या है, एमएसपी का सिग्निफिकेंस है कि अगर गवर्नमेंट कह रही है कि राइस का एमएसपी जो है वो 15 रुपए किलो है एमएसपी, तो राइस जो है एक खरीफ क्रॉप है। खरीफ क्रॉप को की सोइंग का सीजन कब आता है, उसकी सोइंग का सीजन आता है, ये जो अपना मानसून साउथ वेस्ट मानसून का सीजन जो है, वो सीजन कब होता है, जून जुलाई में। तो अपने यहाँ जब बारिश आती है इंडिया में, उस समय जो अपन फसल बोते हैं वो खरीफ क्रॉप्स होती है। तो उसमें से एक क्रॉप है आपकी राइस, पैडी जिसको कहते हैं। ठीक है, राइस जो है उसके आप एग्रीकल्चर उसका उसको बो रहे हो। ठीक है, उसकी सोइंग कर रहे हो, तो उस सोइंग सीजन से इमीडिएटली महीना भर पहले गवर्नमेंट अनाउंस करती है एमएसपी। क्या करती है, अनाउंस कर रही है एमएसपी। गवर्नमेंट कह रही है कि पैडी का जो एमएसपी है इस साल वो है, मान लो वो क्विंटल में बताती, मैं आपको किलो में बता रहा हूँ उसी का, 15 रुपए किलो। तो गवर्नमेंट ने कह दिया कि जो राइस है वो 15 रुपए किलो है। ठीक है, तो इस बार जो आप राइस जो प्रोड्यूस करोगे उसकी मार्केट प्राइस होगी, इनिशियल जो होगी, इनिशियल वो होगी 15 रुपए। मतलब 15 रुपए से कम में वो मार्केट में नहीं बिकेगा, ऐसा गवर्नमेंट ने बोल दिया। तो गवर्नमेंट कहती है कि 15 रुपए इस पे एमएसपी है, अगर मार्केट में आप बेचें तो 15 रुपए से ऊपर में आप बेचो, कोई दिक्कत नहीं है। 15 से 16 मिल रहा है किसान को, अच्छी बात है। 18, 20, 25, 30 मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर किसान को 15 रुपए से कम मिल रहा है, या मार्केट प्राइस किसी वजह से 12 रुपए, 10 रुपए या 8 रुपए हो गई, हो सकती है मार्केट तो वोलेटाइल हो सकता है, ऐसा हो जाता है। तो क्योंकि गवर्नमेंट ने एमएसपी डिसाइड कर रखी है, दैट इज 15 रुपए, तो किसान को 15 रुपए से कम में कहीं बेचने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट क्या करेगी, उस किसान से जितना भी उसका फसल है उसको 15 रुपए पे खरीद लेगी एमएसपी। ठीक है, इसको कहते हैं एमएसपी का कॉन्सेप्ट ये है एग्जैक्टली। ठीक है, इससे क्या होता है, किसानों को नुकसान नहीं होता है, या मार्केट का जो एक मैकेनिज्म है, किसान जिससे अवेयर नहीं रहते हैं, वहां पे कार्टलाइजेशन हो जाता है, वहां पे धोखाधड़ी हो जाती है उनके साथ, उनका माल सस्ते में ले लिया जाता है, वो तो वो उस सस्ते में नहीं पड़े, और उनको गवर्नमेंट उससे क्या करेगी, एमएसपी पे वो चीज ले लेगी। समझे, ये है मेन मैकेनिज्म। अब अगर गवर्नमेंट को लगता है कि इस साल इंडिया में राइस जो है वो कम है और राइस का प्रोडक्शन हमको बढ़ाना है, अगर गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है, गवर्नमेंट के पास एस्टिमेशन होते हैं सारे, गवर्नमेंट को लग रहा है राइस कम है, राइस का प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो गवर्नमेंट जब अनाउंस करती है एमएसपी, तो वो क्या करती है, उस एमएसपी को थोड़ा हाइक कर देती है। एमएसपी हाइक करने से क्या होता है, किसान के लिए वो प्रॉफिटेबल बन जाता है। प्रॉफिटेबल बनता है तो किसान सोचता है अरे यार राइस का एमएसपी अच्छा है तो राइस उगाते हैं। ठीक है, तो कोई कभी कभी कोई और फसल भी उगा रहा होता है तो उसको छोड़ के राइस उगा देता है, बिकॉज राइस का एमएसपी अच्छा होता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट इस तरीके से भी मार्केट में जो सप्लाई और डिमांड का एक सिनेरियो बनता है उसको कंट्रोल कर लेती है। समझ रहे हो, ये है एमएसपी का चक्कर। अब एमएसपी किन किन की डिसाइड होती है, अब ये तो हो गया खरीफ क्रॉप। अब खरीफ क्रॉप की हार्वेस्टिंग कब आ जाएगी, नवंबर के आसपास आ जाएगी। मतलब जो राइस आपने जून जुलाई में बोया है
उसको आप नवंबर के आसपास क्या करोगे, काटोगे। वो काटने के बाद आपके पास आएगा ये रबी क्रॉप। रबी क्रॉप आएगी क्योंकि ठंड का समय आ जाए, मानसून खत्म हो जाएगा। अब आप बोलोगे मान लो गेहूं, गेहूं जो है रबी क्रॉप है, तो गेहूं का जो एमएसपी होगा वो उसकी सोइंग सीजन से 1 महीना या 15-20 दिन पहले गवर्नमेंट क्या करेगी, बता देगी कि गेहूं का एमएसपी जो है वो 13 रुपए है या 14 रुपए किलो। ठीक है, उससे क्या होगा, वापस वही वाला मैकेनिज्म जो राइस के साथ हुआ। ठीक है, ये हो गई आपकी एमएसपी। अब एमएसपी कैसे डिसाइड होती है वो हमने देख लिया, मैकेनिज्म क्या है। अब एमएसपी किस किस की डिसाइड होती है, एमएसपी सिर्फ 22 क्रॉप्स की डिसाइड होती है इंडिया में, सबकी नहीं होती। तो 22 क्रॉप्स जो है वो कौन कौन सी है वो देख लो। 22 में से 14 खरीफ वाली है। खरीफ वाली मतलब वो जून जुलाई में जिनका सोइंग, पैडी हो गया, ज्वार, बाजरा, मेज, रागी, तुर, मूंग, उड़द, ग्राउंडनट, सोयाबीन, सनफ्लावर, सिसमम, ये नाइजर सीड्स, कॉटन। ठीक है, ये जो सारी है ना, ये सारी 14 क्रॉप्स जो हैं, ये है आपकी कौन सी, खरीफ क्रॉप। इन सब का सर? गवर्नमेंट, यस सर नाइजर सीड्स क्या है, मैंने हिंदी में इसका नाम क्या है? नाइजर सीड्स को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे भी नहीं पता, मुझे तो दिख रहा है वो मतलब नाइजर सीड्स मैंने भी देखा है। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं आई डोंट नो। नाइजर सीड्स मुझे मतलब नजर तो आ रहा है, आप चेक कीजिएगा इसको क्या कहते हैं हिंदी में। ठीक है, मुझे इसका ओके पिक्चर सर। ओके। तो ये 14 खरीफ क्रॉप्स हैं जिनका एमएसपी गवर्नमेंट डिसाइड करती है। एंड 6 रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स कौन सी है, वीट, बार्ले, ग्राम, मसूर, रेपसीड और ये मस्टर्ड, तो ये सनफ्लावर। ठीक है, और 2 कमर्शियल क्रॉप्स है, जूट और कोपरा। इनका ओवरऑल क्या करती है 14, 6 और ये 222। इन सब का गवर्नमेंट क्या डिसाइड करती है, एमएसपी डिसाइड करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा जो है जिसका प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है वो है आपका पैडी जो खरीफ है आपका, और वीट जो आपका रबी है। और क्योंकि ये दोनों क्या है, स्टेपल फूड है, क्योंकि पैडी जो राइस है रोज खाते हैं मोस्टली इंडिया में, और वीट जो है रोटी रोज खाते हैं, गेहूं। तो गेहूं और चावल 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो इन सब का सिर्फ गवर्नमेंट एमएसपी डिसाइड करती है, बाकी सबका नहीं होता। ठीक है ना, तो ये वाली बात है। अब समझ में आ गया सर, किन्होंने पूछा था ये क्वेश्चन? सर मैंने मतलब मुझे दिख नहीं रहा ना नाम बताइए ना। सर शरहब ने। अच्छा, ओके ओके, ठीक है ना, क्लियर हो गया ना ये? ओके, उनकी आवाज बहुत दूर से आ रही है, बहुत दूर से बात कर रहे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, अभी सुनाई दे रहा यस है? यस यस यस, कीप गोइंग। सर मैंने पूछा कि कहाँ से लेते, जैसे ब्लॉक लेवल पे या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, मतलब एक स्पेसिफिक जगह है वहीं से लेते हैं, मैं ऐसा पूछ रहा हूँ। हाँ वो आ रहे हैं आगे ठीक है, मतलब ये कह रहे हैं कि आप अच्छा, गवर्नमेंट कहाँ पर खरीदती है किसान से ये चीजें। हाँ हाँ, एक्चुअली वही है। हाँ वही 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 आज पढ़ने वाले बच्चे हम। ठीक है अच्छा ठीक है। हाँ, ठीक है, हो जाएगा क्लियर अभी। तो आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि ये सब जो हो रहा है काम वो कहाँ हो रहा है। ठीक है, तो सपोर्ट सिस्टम देखो पहले। गवर्नमेंट जो है वो पर केजी का प्राइस नहीं बताती, वो क्विंटल का बताती है। ठीक है, तो एमएसपी ऑफ रबी क्रॉप्स का थोड़ा आप देखेंगे 21 और 22, 23 जो है इसमें देखो। वीट का 2021 में 1975 था, ये बढ़ा है, मतलब परसेंटेज चेंज मतलब इंक्रीज हुआ है। ठीक है, कंटिन्यूसली इंक्रीज ही हुआ है एमएसपी सभी का। ठीक है, देखो सबका एमएसपी मोस्टली इंक्रीज हुआ है, इतना इतना परसेंटेज इंक्रीज भी दिखाया है इन्होंने। ये आप खरीफ क्रॉप्स का दे सकते हो, खरीफ क्रॉप्स में भी सब में परसेंटेज चेंज उन्होंने प्रीवियस ईयर का नहीं दिखाया, बट उन्होंने परसेंटेज चेंज दिखा दिया इसमें। तो आप देखोगे कि सभी का करीब करीब पॉजिटिवली क्या हुआ है, इंक्रीज ही हुआ है। मतलब एमएसपी जो है वो पर ईयर इंक्रीज ही हो रहा है मोस्टली, क्योंकि आप देखोगे कि इन्फ्लेशन है फूड आइटम्स में। अब देखो कि द यूनियन बजट फॉर 18-19 had announced the predetermined principle to keep MSP at level of 1.5 टाइम ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये हमने इसी में देख लिया था। ठीक है, ऑलमोस्ट 50% मार्जिन है। तो इन्होंने क्या किया था कि बजट 18-19 में इसको अनाउंस ही कर दिया था कि 1.5 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जितना भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा ना उसका 1.5 हम क्या करेंगे, प्राइस लगाएंगे। अगर 100 रुपए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है तो 150 रुपए उसका प्राइस होगा, 50% उसमें मार्जिन उनका जोड़ देंगे।
ठीक है, तो इसी के हिसाब से आप ओवरऑल अभी डिसाइड करते हैं। इसको उन्होंने पॉलिसी का ही पार्ट बना दिया, ये हमने देख लिया था। लिमिटेशंस ऑफ पीडीएस में हमने देखा था कि हमने देखा कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आया किस लिए था, अफोर्डेबिलिटी के लिए आया था। 3 ए याद रखने हैं आपको, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड एक और क्या था, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और अवेलेबिलिटी, तीनों। ठीक है, ये तीनों ए मिलके आपकी फूड सिक्योरिटी भी बनाते हैं और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का आधार भी बनते हैं, तीनों होने चाहिए। तो हमने ये देखा था कि नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे ने ये बताया कि कोई भी डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं मिला उनको पीडीएस के बीच में और मल नरिशमेंट के रिडक्शन के बीच में। बट ऐसा नहीं है कि कंट्री में जो मल नरिशमेंट है, ठीक है, वो कम नहीं हुआ है। ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत कम हुआ है। एक डायरेक्ट कोरिलेशन भले ही ना मिला हो, बट कहीं ना कहीं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की वजह से, ठीक है, क्योंकि मल नरिशमेंट के बहुत सारे रीजन होते हैं। इट्स नॉट ऑलवेज लाइक कि आपका पेट भर रहा है, ठीक है, जो हमने बात करी कि पेट भरने से नहीं हो जाता है, यू नीड टू ईट द राइट सब्सटेंसेस, ठीक है, अदरवाइज आपको कोई ना कोई बॉडी का डिसीज हो ही जाएगा, ठीक है, कोई सिंड्रोम भी हो सकता है आपको। तो हमको ये देखना है कि जो एक जिसको एक बैलेंस्ड डाइट कहते हैं, बैलेंस डाइट में आपको पता है कि जो सारे कंपोनेंट्स है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, प्रोटीन है, हमने एक बार डिस्कस भी किया था इस पे कि कार्बोहाइड्रेट आपको सिर्फ एनर्जी देगा, ठीक है, प्रोटीन्स आपको ग्रोथ देंगे, विटामिन आपके इम्यून को क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो अगर आप सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही ले रहे हैं, जैसे आप देखेंगे कि जो वल्नरेबल है, डाउन टू अर्थ जो पुअर सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है, दे आर नॉट एबल टू बाय द स्टफ विच इज which will provide them the vitamins and all this, because vitamins you mostly get from the fruits and fruits are kind of expensive, so they won't able to buy the fruits. So in that case scenario, what they will do, like what will happen with them, their immune will be very weak, so in that case they are very prone to diseased, okay, बहुत जल्दी उनको बीमार हो जाते हैं या उनको कोई ना कोई इश्यू हो जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो पॉपुलेशन पुअर है, वल्नरेबल है, उनके लिए कहीं ना कहीं जो फूड कंपोनेंट्स हैं जो कि इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, या समटाइम्स पहले ये भी कहते थे कि दाल रोटी का जुगाड़ हो जाए तो बहुत है, बट आजकल दाल इतना महंगा है कि दाल रोटी भी नहीं बोल पाते सभी लोग, बिकॉज जो लेंटिल्स है, जो ये जो सारी चीजें हैं, दाल वगैरह बहुत महंगी हो गई। ठीक है, पहले जैसा माहौल नहीं है, चेंजेस बहुत आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं इस सिनेरियो को कंट्रोल करने के लिए, बिकॉज मल नरिशमेंट इंडिया में बहुत ज्यादा है, और मल नरिशमेंट में आप सिर्फ एक कंपोनेंट के साथ अगर जाएंगे एड्रेस करने के लिए, एक कंपोनेंट कौन सा, सिर्फ अवेलेबिलिटी वाला, ठीक है, तो अवेलेबिलिटी वाले पे जाएंगे तो नहीं कर पाए, ठीक है, बिकॉज आपने अवेलेबल तो करा दिया, बट अवेलेबल आप क्या चीज करा पा रहे, ठीक है, उसकी अफोर्डेबिलिटी भी होनी चाहिए। ठीक है, फ्रूट्स बहुत महंगे अवेलेबल है, मतलब दिख रहे हैं मार्केट में, वो तो खरीद नहीं पा रहा बिकॉज अफोर्डेबल नहीं है। तो नहीं अफोर्डेबल है तो विटामिन की कमी होगी, विटामिन की कमी होगी तो फिर दिक्कत आएगा, इम्यून नहीं उनका उतना स्ट्रांग हो पाएगा। ठीक, तो ये बात समझने वाली है हमारी। तो पीडीएस आने का जो मेन रीजन है वो ये है कि मल नरिशमेंट बहुत ज्यादा है और फूड सिक्योरिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है, बिकॉज कहीं ना कहीं बहुत लार्ज चंक ऑफ पॉपुलेशन जो है वो कहीं ना कहीं क्या है, बिलो पॉवर्टी लाइन पे है, और इसके लिए उनको अवेलेबल कराना जरूरी है। और अबाउ पॉवर्टी लाइन पे भी आ जाते हैं। अभी ये पॉवर्टी लाइन क्या होती है, हम अभी हमारा ये चैप्टर खत्म होने के बाद पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट ही आए, उसमें हम समझेंगे कि पॉवर्टी होती क्या है और ये जो पॉवर्टी लाइन है वो कैसे डिसाइड होती है। तो कई बार ये भी होता है कि पॉवर्टी में जो अगर कोई एक पॉवर्टी लाइन है कि भाई साहब अगर आप इतना पैसा कमा रहे हो, ठीक है, उतना पैसा एक लिमिट बना दिया उन्होंने, उतना कमा रहे हो तो आप पुअर नहीं हो, उससे ज्यादा कमा रहे हो तो पुअर नहीं हो, उससे कम कमा रहे हो तो आप पुअर हो। ठीक है, बट कई बार ये होता है कि आप अबव पॉवर्टी लाइन से तो आप ऊपर आ जाते हो, फिर भी आपकी जो इनकम लेवल है वो उतना नहीं है कि आप एक बैलेंस्ड डाइट पर जा पाओ, ये भी एक इशू रहता है। ठीक है, इसीलिए जो बिलो पॉवर्टी लाइन तो है ही, बट जो अबव पॉवर्टी लाइन है वो भी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर कवर हो रहे हैं, और उनको भी क्या किया जाता है, ये जो सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। अभी हम पढ़ने वाले नेशनल फूड सिक्योरिटी अभी थोड़ी देर, ठीक है। तो यहाँ पे एक डायरेक्ट कोरिलेशन भले ही नहीं मिला हो नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे को, बट स्टिल ऐसा नहीं है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का जो न्यूट्रिशन लेवल है कंट्री पे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, ऐसा नहीं। ठीक है, न्यूट्रिशन लेवल डेफिनेटली इंक्रीज हुआ है बिकॉज अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी हुई है, उससे उनको मिला है एटलीस्ट स्टारवेशन डेथ, और जो लाइक जो क्या बोलते हैं भूखमरी से डेथ्स जो है वो कहीं ना कहीं क्या हो गई, इंडिया में बहुत कम हो गई, या एटलीस्ट अभी है भी नहीं, ऐसा कहा जा सकता है।
ठीक है, विजिबिलिटी में तो नहीं है, ठीक है, ओवरटली नहीं है, ओवरटली का कुछ कह नहीं सकते। सो हियर यू कैन सी द लिमिटेशंस ऑफ पीडीएस की पीडीएस हम लेकर तो आ गए, हमने एमएसपी डिसाइड कर दिया, हमने फार्मर्स को दे दिया, फिर हमने डिस्ट्रीब्यूट करके बेनिफिशियरी तक भी पहुंचा दिया, बट स्टिल इस पूरे में कहीं ना कहीं क्या है, हम लोगों का कुछ ना कुछ कमियां हैं, जो ड्रॉबैक्स हैं उनको हम देख रहे हैं पीडीएस सिस्टम। तो पीडीएस सिस्टम में हम देखेंगे कि ठीक है, एक्सक्लूजन और इंक्लूजन की एक बड़ी प्रॉब्लम है। एक्सक्लूजन और इंक्लूजन की क्यों प्रॉब्लम है? हमने देखा कि जो राशन कार्ड है वो कौन बना रहा था? स्टेट गवर्नमेंट बना रही थी, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बना रही राशन कार्ड, स्टेट गवर्नमेंट बना रही है। स्टेट गवर्नमेंट जब बना रही है, बेनिफिशियरीज को वो आइडेंटिफाई कर रही है, कौन एलिजिबल होगा कौन एलिजिबल नहीं होगा, इसको भी स्टेट गवर्नमेंट आइडेंटिफाई कर रही है। उनके पास एक कोई एसओपी नहीं है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं है इसके हिसाब से वो करें, या सारे स्टेट्स एक जैसे तरीके से करें, नहीं है, उनके पास अपने अपने अलग अलग मॉडल्स हैं। इससे कहीं ना कहीं अनॉमली रहती है, एम्बिग्यूटी रहती है, और दोज पीपल हु आर लिटरली एलिजिबल आर समटाइम्स doesn't come in the fold of the beneficiary. Okay, so this is the biggest problem कि inclusion exclusion का problem है। There are so many people who are not eligible but becoming part of this they are reaping the benefit of the National Food Security Act and the subsidized ration. There are so many people who are the real people, they want the benefit of this National Food Security Act, but they are out of the ambit of this subsidized ration. So this inclusion and exclusion की जो प्रॉब्लम है वो आज भी है, तो ये एक प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। सेकंड हमने देखा, ये सेकंड वाला पॉइंट भी मोस्ट ऑफ यही है, ठीक है। थर्ड पॉइंट में घोस्ट कार्ड्स बहुत ज्यादा है। घोस्ट कार्ड्स का मतलब है कि दैट पर्सन डजंट एग्जिस्ट, ठीक है। बिकॉज होता क्या है ना, आप जब आपने फेयर प्राइस शॉप देखी होगी, उस फेयर प्राइस शॉप पे आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा कोई अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म नहीं है, कोई ऊपर से कोई टीम उनको चेक नहीं कर रही है, एक करप्शन जो है वो वहां पे कहीं ना कहीं पेनिट्रेटेड है, और जो लोकल लेवल के लीडर्स हैं वो कहीं ना कहीं इंडल्ज रहते हैं, तो करप्शन है। उस करप्शन की वजह से क्या होता है कि जो एलिजिबल पीपल है वो उसका फायदा नहीं उठा रहे, और घोस्ट कार्ड्स बन जाते हैं। घोस्ट कार्ड्स मतलब जो पर्सन एग्जिस्ट नहीं कर रहे, उनके कार्ड्स बने हुए हैं, उनके नाम पे क्या हो रहा है, राशन को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, ठीक है, वो नहीं ले जा रहे तो किसी और को दे दे रहे हैं, किसी और को दे दे रहे हैं, या फिर वही अपने लेवल पे सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि उनको दे दिया गया है, और वो भी उसकी होर्डिंग करके उसको क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कालाबाजारी कर रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा जो इशू है, जिसको आप अगर इसमें देखोगे कि लीकेजेस जिसको कहा जाएगा, इस पूरे सिस्टम में, इस पूरी चेन में लीकेजेस बहुत ज्यादा है, लीकेजेस इज नॉट गुड। तो ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी इज ऑलवेज अ चैलेंजिंग टास्क, बिकॉज कहीं ना कहीं डेटा के मामले में अभी तक हम उतने एडवांस नहीं हुए हैं। हमारे पास अगर हम सेंसस डेटा की बात करें तो 21 का सेंसस जो है उसका डेटा अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ है। इवन 2011 की जो सेंसस का डेटा है वो भी अभी तक प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है। तो सेंसस हर 10 साल पे कंडक्ट करना है, वो हो रहा है, बट कहीं ना कहीं वो डेटा जो है उतना इफेक्टिव नहीं है, डेटा में फ्लॉज ज्यादा है। उस फ्लॉज की वजह से कागजों में कुछ और है और ग्राउंड पे कुछ और है, जो धरातल की हकीकत है वो अलग है, ठीक है। तो ग्राउंड लेवल पे उस तरीके से काम नहीं हो पाता। तो डेटा आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज डेटा इज वेरी क्रूशियल फॉर द पॉलिसी मेकिंग। इफ यू हैव करेक्ट डेटा that this much people are still living below poverty line, and these are the people who are facing transgenerational transmission of poverty. Okay, they're continuously, their 3-4 generations are poor, it means they need special care, they need affirmative actions and some other things. So all these things you would be able to do only when you have a very good data. Okay, that's why the data of the people, their demographic data along with this socio-economic data is very crucial for the policy making. Otherwise, if you make the policy on the basis of the flawed data, then you won't able to inculcate the real objective, you won't able to achieve your real objective. So identification of beneficiary, storage capacity we are lacking, we already seen. This is the although obscure data, the previous one, but still the more or less situation is same. Okay, we are still facing the lack of storage capacity. Now, what will happen if there is a lack of storage capability? What will happen? Very simply, अगर आपके घर में 10 ही लोगों के सोने की जगह है, ठीक है, बट आपके घर में 15 लोग, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। 10 लोगों की सोने की जगह है और 15 लोग आपके पास अवेलेबल है, तो गड़बड़ हो गया ना। 5 लोग कहाँ जाएंगे? घर के बाहर रहेंगे, बाहर रहेंगे तो खराब हो जाएंगे। खराब हो जाएंगे इन सेंस कि अगर मैं
खराब मतलब इंसान तो खराब नहीं होगा, बट हम फूड क्रॉप्स की बात कर रहे हैं। तो अगर आपके पास 1000 किलो 1000 केजी के लिए जगह है रखने के लिए वेयर हाउस में, बट आपके पास 1000 से ज्यादा है, ठीक है, 1500 है, तो 500 केजी कहाँ रहेगा? बाहर रहेगा। बाहर रहेगा तो डेफिनेटली वो वेदर की जो सिचुएशन है, कंडीशन है, उसके हिसाब से क्या करेगा, प्रॉन रहेगा, वो खराब होने की कंडीशन रहेगी, बारिश होगी तो भीग जाएगा। और कई बार होता है कि वेयर हाउसेज में, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के वेयर हाउसेज में आपने सुना होगा बीच में इशू भी बहुत ज्यादा हो गया था कि जो अनाज है, वो जो सीरियल्स है, वो सारी क्या हो गई, खराब हो गई। तो खराब हो जाती, बारिश में भीगेगी तो खराब होगी डेफिनेटली, गीला होने के बाद कैसे काम कर पाएंगे। तो ये भी इशू है, ये एक बड़ा इशू है, ठीक है। फाइनेंशियल बर्डन, डेफिनेटली ह्यूज फाइनेंशियल बर्डन, बिकॉज ऑलमोस्ट 2.5 लाख, या अभी देखेंगे कि अभी आत्मनिर्भर भारत पैकेज और इसके अंडर तो और ज्यादा चला गया, तो करीब करीब 3 लाख करोड़ रुपीस, 3 लाख करोड़ रुपीस जो है पब्लिक एक्सचेकर पे सब्सिडी का बर्डन है। सिर्फ फूड सब्सिडी की बात कर रहा हूँ मैं, ओवरऑल सब्सिडी तो और ज्यादा चली जाती है, सिर्फ फूड सब्सिडी, फूड सब्सिडी करीब करीब 3 लाख करोड़ है एन्युअली, which is huge. Okay, so if you will not rationalize the beneficiaries, then definitely it would be very difficult कि आप इसके साथ सस्टेन कर पाओ इतना ज्यादा फूड सब्सिडी अगर आप देंगे, ठीक है। तो आपको सब रेशनलाइज करना पड़ेगा, किनको, बेनिफिशरीज को, कि कौन किनको देना चाहिए, किनको नहीं देना चाहिए, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट 67 to 70% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज टेकिंग बेनिफिट। करीब करीब इंडिया की 67% पॉपुलेशन जो है वो सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स ले रही है फेयर प्राइस शॉप से, विच इज ह्यूज, क्योंकि इतने ज्यादा लोग तो बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं है, बट एपीएल के लिए भी अवेलेबल है वो, तो ये बहुत ज्यादा है। तो इसको रैशनलाइज करके अगर आप 67 को 50% पे भी लाएंगे तो भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा पब्लिक एक्सचेकर को क्या होगा, फायदा होगा। तो इसको रैशनलाइज करने की जरूरत है। करप्शन एंड लीकेजेस की बात करी हमने, करप्शन लीकेजेस में और भी बहुत सारी प्रैक्टिसेस, अलग अलग जगह अलग अलग तरीके की प्रैक्टिस होती है। कई बार ये होता है कि बहुत अच्छी क्वालिटी का फूड ग्रेन होता है, ठीक है, आ रहा है बहुत अच्छा वाला फूड ग्रेन आ रहा है पीडीएस में, बट हो क्या रहे, फेयर प्राइस शॉप वाले ने देखा कि हाँ क्वालिटी अच्छा है, तो वो जो इंफीरियर फूड ग्रेन्स होते हैं उनसे उनको रिप्लेस कर देते हैं, इंफीरियर वाले जो है आगे पीडीएस में बेनिफिशियरी को दे देते हैं, और जो अच्छा वाला आया होता है उसको फिर हाई प्राइस में मार्केट में क्या करते हैं, बेच देते हैं। ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, बिकॉज इस प्रैक्टिस को चेक कर पाना थोड़ा सा क्या रहता है, डिफिकल्ट रहता है, ट्रिकी रहता है, बट स्टिल इसकी चेकिंग होती है, ठीक है। अगर आप अकाउंटेबिलिटी का पूरा मैकेनिज्म इंश्योर करते हो, आप अगर आंसरेबिलिटी इंश्योर करते हो हर चैनल पे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं चीजें ठीक हो सकती हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड हमने देखा था, ठीक है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर हमने देखा था कि जो मोस्टली कोविड के टाइम पे ज्यादा हुआ था, या उसके पहले भी चल रही थी प्रॉब्लम, तो ये कि माइग्रेंट जो होते हैं, एक माइग्रेंट है फ्रॉम बिहार एंड वर्किंग इन मुंबई, ओके, तो उसके पास बिहार का राशन कार्ड है, तो वो क्योंकि मुंबई में रह रहा है, उसकी फैमिली भले हो सकता है वहीं रह रही हो, या फिर हो सकता है फैमिली के साथ वो मुंबई चला गया, ठीक है, तो ये उसको वहां पे नया राशन कार्ड बनाना पड़ेगा अगर उसको वापस बेनिफिट लेना है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स का, ठीक है। तो वो वहां पे कई बार प्रॉब्लम में आ जाते हैं, और कई बार ये हो जाता है कि माइग्रेंट्स के साथ ये दिक्कत होती है कि जैसे मान लो कंस्ट्रक्शन वर्कर है, तो कंस्ट्रक्शन वर्कर हो सकता है कभी मुंबई में रहे, और कभी हो सकता है पुणे चला जाए, कभी राजस्थान के जयपुर चला जाए, 6 महीने वहां रहेगा, 6 महीने, तो अगर कंटिन्यूसली वो डिस्प्लेस होने वाले जॉब प्रोफाइल में है, तो उसके लिए बहुत दिक्कत आ जाएगी कि वो ये हर जगह जाके राशन कार्ड बनवाने में टाइम लग जाएगा उसको, और वो उसके लिए सही रहेगा नहीं, तो कई बार वो कर नहीं पाते इस चीज पे, क्योंकि हर राशन कार्ड के साथ आपको अटैच्ड एक फेयर प्राइस शॉप भी होती है, तो उस फेयर प्राइस शॉप से, जैसे इस वार्ड का आपको राशन कार्ड बना है तो उस वार्ड की फेयर प्राइस शॉप से ही आप ले पाओगे, फिर आप दूसरी जगह जाओ वहां करवाओ, तो आप दूसरी राशन शॉप से ले नहीं पाओगे, वो आप जो एंटाइटल्ड है उसी से ले पाओगे। तो बिहार का व्यक्ति जब मुंबई चला जाता है तो वहां पे वो अपने उस बिहार वाले राशन कार्ड को यूज नहीं कर सकता, ठीक है, इस वजह से वो फिर उसके लिए महंगा राशन खरीदता है, तो वो क्या मतलब निकला फिर इसका, या फिर वो बिहार से भर के लेकर जाए वहां पे, ठीक है, कि दो दो बोरी गेहूं अपने साथ ले जाए, दैट्स आल्सो नॉट प्रैक्टिकल, ठीक है। तो ये वन नेशन वन राशन कार्ड जो है ये स्कीम आई है, इसमें क्या है ना कि एक ही राशन कार्ड से आप पूरे इंडिया में कहीं पर भी रहो, आप फूड ग्रेन्स को क्या कर पाओ, एक्सेस कर पाओ, ठीक है। और इन इसमें ऐसा तक है कि अगर आप मान लो पति, आपकी पत्नी जो है या आपकी फैमिली जो है वो, सर आपकी वॉइस कट रही है। हेलो हेलो हेलो, सर नहीं सर क्या ठीक कहा है, इससे पहले
पता नहीं सर, मेरे तरफ शायद। हेलो। तो 2 मिनट पहले आपने जो नहीं भी सर, कहा था ठीक है। रिपीट कर दीजिए। हम्म, अभी सर एक वन गाना नेशन वन राशन कार्ड ये। अभी एक गाना गाऊंगा तो तुरंत आवाज आ जाएगी आपको। नहीं सर, आज ही था वैसे, मतलब साउंड कट हो रही है बस। ओके ओके, आई एम जस्ट किडिंग। वन नेशन वन राशन कार्ड बहुत सिंपल है। बिहार का कोई लेबर है, मुंबई में रह रहा है, या फॉर एग्जांपल मुंबई का कोई लेबर है, वो पटना में रह रहा है। ठीक है, मुंबई का एक लेबर है जो पटना जाके काम कर रहा है, उसको वहां पे राशन लेना है, पर मुंबई का उसके पास क्या है, राशन कार्ड, वो नहीं ले सकता। ठीक है, तो वन नेशन वन राशन कार्ड के अंदर ये है कि राशन कार्ड कहीं का भी हो, आप किसी भी आपकी जो नियरेस्ट राशन शॉप है वहां से जाके आप राशन कलेक्ट कर सकते हो। ये है वन नेशन वन राशन कार्ड। इसमें इतना भी है कि अगर आप कहीं और रह रहे हो, मुंबई के आप हो, पटना में काम कर रहे हो, मुंबई में आपकी फैमिली रह रही है, आपकी वाइफ, आपके माता जी पिताजी वहां रह रहे हैं, तो आप थोड़ा बहुत राशन आप पटना में ले सकते हो, फिर आपकी फैमिली पीछे उसका आपका जो बचा हुआ रिमेनिंग है वो वहां ले सकते हैं। ठीक है, ओवरऑल उनके पास एक अकाउंट रहेगा आपका, तो वो मेंटेन करते रहेंगे। ठीक है, इसको कहते हैं वन नेशन वन राशन कार्ड। ओके, तो ये जो जियोग्राफिकल हिंड्रेंस टू सोशल जस्टिस है, सो व्हाट इज द एम ऑफ द वन नेशन वन राशन कार्ड? It is the easy availability of the food grain, subsidized food grain to the mostly migrant labor. Okay. On the other hand, it also removes the geographical hindrance to the social justice. Okay, these are some of the provisions. राशन कार्ड्स इन इंडिया, हम लोग पीछे आ गए क्या वापस? ये तो हम पढ़ चुके हैं सारा। ओके, हम लोग रिवाइज कर लिए ऑलमोस्ट 1 घंटे से रिवीजन कर रहे हैं हम। राशन कार्ड्स इन इंडिया, आपको पता है कि ये राशन कार्ड्स जो है स्टेट गवर्नमेंट्स बनाती हैं। ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंडर आप इसका बेनिफिट ले सकते हो। टारगेटेड पीडीएस में आपको बताया था कि इनिशियली जो वर्ल्ड वॉर 2 के आसपास था वो एक जनरलाइज्ड एंटाइटलमेंट था, यूनिवर्सल स्कीम थी। मतलब उसमें कोई कैटेगरी नहीं थी, जिस भी पर्सन को जरूरत है वो आके ले सकता था। ठीक है, समझ आ रहा है ना? ये यूनिवर्सल सिस्टम था। यूनिवर्सल सिस्टम में क्या हो रहा था, कोई गरीब अमीर कुछ नहीं, जिस भी पर्सन को चाहिए वो आके ले सकता था, कोई कार्ड आर्ट का सिस्टम नहीं था यहाँ पे। ठीक है, फिर उन्होंने धीरे धीरे रिवैम्प्ड पीडीएस जो आया, रिवैम्प्ड पीडीएस ने उन्होंने क्या किया कि वो जो फार फ्लंज एरिया थे, या फिर कोई ऐसा रिमोट एरिया है या बहुत हिली टेरेन है, जो डिफिकल्ट टेरेन है, जहाँ पे पहाड़ पे लोगों को मिल नहीं पा रहा, वहां भी उन्होंने क्या किया, एक्सेसिबिलिटी बनाई। ठीक है, 1997 में इसको टीपीडीएस लाया गया, टारगेटेड पीडीएस। इन्होंने कहा कि अब आप फोकस पुअर पे करो, रादर देन कि सबको बांटो, आप पुअर पे जाओ टारगेटेड पीडीएस में। ठीक है, टारगेटेड पीडीएस में उन्होंने फिर 2 कार्ड बनाए, एक बीपीएल और एक बिलो पॉवर्टी लाइन और अबव पॉवर्टी लाइन। तो ये उन्होंने इसलिए बनाया ताकि वो टारगेटेड पे जा पाए, ताकि पब्लिक एक्सचेकर पे उसका जो बर्डन है वो कम रहे, और आप स्पेशली जो पुअर पीपल है उनको टारगेट कर दो। अंत्योदय अन्न जो थी वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पे स्टार्ट हुई थी 2000 में। उसका जो मेन फोकस था, अंत्योदय का मतलब जो अंत में है उसको उदय करना है, उसका उदय करना है। मतलब ठीक है, जो एकदम वल्नरेबल और एकदम गलीबल कंडीशन में डाउन ट्रोडन है बिल्कुल, ठीक है, उसको आप क्या करो, फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करो। अंत्योदय अन्न हो गया। रिवैम्पिंग पीडीएस, मतलब पीडीएस के अंदर कुछ जो चेंजेस लाने, उसमें एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन पे हमने बात की थी। जस्टिस वाधवा कमेटी ने रिकमेंड किया था एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन, ये 2011 का रिकमेंडेशन है। और उसके बाद अब जो है एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन पे बहुत ज्यादा चीजें हो रही है, बिकॉज अब टेक्नोलॉजिकली हम बहुत एडवांस हो गए हैं। तो पीडीएस शॉप्स पे अब जो सारा काम है मोस्टली आपके थंब से हो जाता है, आपके आधार कार्ड से हो जाता है। यूनिवर्सल पीडीएस जो कुछ कुछ स्टेट्स हैं, इसका ये फायदा होगा कि एक्सक्लूजन एरर जो रिड्यूस हो जाएगी, मतलब जो लोग एलिजिबल होंगे और नॉन एलिजिबल होंगे सबके लिए क्या रहेंगे, आप कॉमन रखोगे। पर अपन टारगेटेड पीडीएस पे आए ही इसीलिए थे कि आपका फोकस पुअर पे जा पाए। बट अभी इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का इशू है, इसके लिए कहा जाता है कि आप यूनिवर्सल पे चले जाओ। ठीक है, एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम का भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उस पर आप चले जाओ। तो एक जनरल एंटाइटलमेंट रखो ताकि दिक्कत ना हो। बट इसके कुछ नुकसान भी है, वापस वही अपन जो पब्लिक एक्सचेकर पे इसको दिक्कत आएगी। डिजिटलाइजेशन वही पार्ट, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश गुड एग्जाम्पल। आधार का यूज करके आप कर सकते हो, आधार का यूज अभी हो ही रहा है। फूड सिक्योरिटी इन इंडिया,
यहाँ से हमको स्टार्ट करना था। बरोबर, यहीं से शुरू करना था। कोई तो बोलो। यस सर। हाँ सर। Okay. So here you can see a cute baby is eating. Food security in India, important है. India has experienced remarkable economic growth in recent years and remains one of the fastest growing economies in the world. However, poverty and food insecurity in India are still areas of concern. So India still have highest number of absolute poor. Okay, absolute poverty की बात करी जाए तो इंडिया के highest है अभी तक वर्ल्ड में. Okay, and food insecurity still food insecurity है because poor people can't afford food. So food insecurity is there and it is still area of concern in spite of many strides. Food is considered a basic amenity essential for the sustenance, development and growth of an individual. Definitely. Okay. आपको भूख लगेगी तो कुछ कर पाओगे क्या? कुछ नहीं कर पाओगे, ध्यान उधर ही जाएगा. ठीक है. India has ranked 101 among 116 countries on the Global Hunger Index 2021. So 101 among 116 countries, Global Hunger Index. It's really worrisome for India. इस Global Hunger Index में 116 कंट्रीज में से 101 पे इंडिया. सर अभी तो 107 हो गया ना. हाँ, अभी 107 हो गया. ठीक है, 21 का है, 22 में 107 पे चला गया इंडिया. तो अकॉर्डिंग टू फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, तो ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन रिलीज करता है? FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन. द फूड प्राइस इंडेक्स हैज इंक्रीज्ड बाय 30%. फूड प्राइस इंडेक्स में मतलब इंडिया में जो इन्फ्लेशन है, फूड इन्फ्लेशन, वो इंक्रीज हुआ है. फूड का प्राइस बढ़ा है तो डेफिनेटली उसकी अफोर्डेबिलिटी क्या होगी? कम होगी. तो पुअर पीपल, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर पुअर पीपल टू अफोर्ड द फूड. ओके. Though the government have been actively addressing the food security at household for a long time through the PDS system and the National Food Security Act 2013, अभी पढ़ने वाले ये क्या है National Food Security Act. There are still concerns related to food security in India amidst the increasing population, climate change, global supply chain disruption, Russia-Ukraine war that need to be addressed. अब ये पता है कि still concern है food security में. क्यों concern है? Because population India की continuously increase होती है. Climate change हो रहा है. क्लाइमेट चेंज से कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी एग्रीकल्चर को. क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर पे हमको शिफ्ट होना पड़ेगा ताकि क्लाइमेट के जो रेत है उसको क्या कर पाए, वो झेल पाए. ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शन, ये तो रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से भी है, और जो ग्लोबल और जो जियो स्ट्रेटेजिक कुछ मूवमेंट होती है चीजें. ठीक है, ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होता है तो कहीं ना कहीं सप्लाई चेन डिसरप्ट हो ही जाती है. तो सप्लाई चेन डिसरप्ट होने से कहीं ना कहीं अगर फूड की सप्लाई चेन डिसरप्ट होगी तो इंडियन इकोनॉमी पे फर्क पड़ेगा और इंडिया की फूड सिक्योरिटी पे भी उसका क्या करेगा, डायरेक्ट फर्क पड़ेगा. ओके. तो ये पीडीएस और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू इंडिया कोशिश कर रहा है फूड सिक्योरिटी पे, बट स्टिल इंडिया की जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो रैंक है वो बहुत क्या है, कम, बहुत वर्स्ट है. So the concept of food security is multifaceted. Food is an essential for living as air for breathing. But food security means something more than getting 2 square meals. ठीक है, मतलब food security का सिर्फ ये मतलब नहीं कि आपको दो टाइम खाना मिल रहा है. अभी बताया कि न्यूट्रिशन भी जरूरी है. It is following dimension. First is the availability. It means food production within the country, food imports and the stock stored in the government granaries. ये तो भाई सब सिंपल सी बात है. अवेलेबिलिटी क्या क्या होगी? एक तो आप जो प्रोड्यूस कर रहे हो कंट्री में, सेकंड आप जो इंपोर्ट कर रहे हो वो भी आपकी अवेलेबिलिटी है, और जो आपने स्टॉक बना के रखा है, बफर स्टॉक अभी देखेंगे, इन सबको मिला के आपकी अवेलेबिलिटी बनती है. एक्सेसिबिलिटी मींस फूड इज विद इन द रीच ऑफ ईच पर्सन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन. ऐसा नहीं कि आप कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो या रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो या फिर जेंडर बेस्ड कर रहे हो या कोई और चीज बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो. विदाउट अ डिस्क्रिमिनेशन food should be in the reach of everyone. Affordability, definitely enough money to buy sufficient safe and nutritious food. Now affordability is covering the nutrition. Okay, like availability and accessibility में अगर न्यूट्रिशन नहीं होगा तो चलेगा, न्यूट्रिशन नहीं होगा चलेगा, मतलब अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी न्यूट्रिशन के साथ डील नहीं करेगी. अवेलेबिलिटी में चलो ठीक है, अवेलेबल तो है, एक्सेसिबल भी है, मतलब वही अवेलेबल है, एप्पल है सामने दिख रहा है, बिक रहा है, बट अफोर्डेबिलिटी नहीं आएगी. तो न्यूट्रिशन मोस्टली मिस हो जाता है जस्ट अफोर्डेबिलिटी की वजह से मोस्ट. तो अफोर्डेबिलिटी पे काम करना पड़ेगा, काम करेंगे तो कम से कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन इंश्योर हो पाएगा और मल नरिशमेंट जो दूर हो पाएगा उसी से हो पाएगा.
So these three, collectively make the concept of food security: availability, affordability, and the accessibility. Okay, now we are continuously talking about the National Food Security Act 2030. This is really important act. Let's talk about this. National Food Security Act 2013, it is passed by the Parliament of India, UPA 2. Okay, Congress government जो 2 थी, and Dr. Manmohan Singh was Prime Minister. 2013, it has been passed. What are the objective of food security? Name itself is saying food security, means each and everyone will get the food. To provide for food and nutrition security. Now this is very important. Okay, although food security covertly cover the nutrition. Okay, covertly मतलब वो छुपा हुआ है उसके अंदर. फूड सिक्योरिटी की जब मैं बात करता हूँ तो कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन जो है उसमें छुपा हुआ है. बट स्टिल इफ यू विल राइट द फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, बिकॉज समटाइम्स अगर आप ओवरटली कह देते तो ज्यादा अच्छा है. ठीक है, food and nutritional security. So the National Food Security Act is to provide food and nutritional security in the human life cycle approach. Now this is very important. Human life cycle approach. Human life cycle approach means at the different stages of life, human needs different, quantity and the quality of the food security. Okay, उनको क्वांटिटी भी फूड की अलग अलग चाहिए, बिकॉज आप बचपन में हो तो आपको क्वांटिटी कम चाहिए, फिर आपकी क्वांटिटी में इंक्रीज होगा, फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप एज में जाएंगे, एजेड पॉपुलेशन को वापस फूड कम चाहिए. ठीक है, बट डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन भी उनको चाहिए. तो लाइफ साइकिल अप्रोच है, मतलब लाइफ के हर साइकिल पे आपको डिफरेंट डिफरेंट फूड की क्वालिटी और क्वांटिटी अलग अलग चाहिए. तो ये जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ने कोशिश किया है कि वो ह्यूमन लाइफ साइकिल अप्रोच पे. ठीक है, by ensuring access to adequate quantity of quality food at affordable price. वो तीनों चीजें इसने ले ली. adequate quantity ले ली, मतलब अवेलेबिलिटी है. ठीक है, क्वालिटी ले ली, अफोर्डेबल प्राइस ले लिया. to people to live a life with dignity. Now the main aim is the dignity, life with dignity, life with dignified life is very important. Okay, you can live a life of dignity only when भाई पेट भरा रहेगा तो आप लिबर्टी के बारे में सोचोगे, पेट भरा नहीं रहेगा तो लिबर्टी के बारे में नहीं सोचोगे. ठीक है, लिबर्टी पे 5 लोग मिलकर डिस्कशन कर रहे हैं, इसका मतलब 5 का पेट भरा हुआ. ठीक है, और 5 लोग मिलकर ये डिसाइड कर रहे हैं कि भाई खाना कहाँ से आएगा, इसका मतलब वो उनको जाके बोलोगे कि लेट्स टॉक अबाउट लिबर्टी, वो भगा देंगे आपको कि कैडी लिबर्टी भाई, यहाँ तो भूख लगी है, खाने को चाहिए पहले. तो पेट भरा रहेगा तो आप लिबर्टी पे बात करोगे, तो आप हायर इंटेलेक्ट पे जाओगे. तो इंटेलेक्ट पे तब आओगे आप जब आपका बेसिक नेसेसिटी जो है आपकी फूड वो फुलफिल हो पाएगी. तो लिव अ लाइफ विद द डिग्निटी. तो लाइफ विद डिग्निटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, भूखे पेट पे लाइफ विद डिग्निटी नहीं आ पाएगी. ठीक है, भूखा आदमी डिग्निटी की बात नहीं करेगा. नाउ कवरेज, इस नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑब्जेक्टिव समझ आ गया. ऑब्जेक्टिव में क्या करना है? एडिक्वेट क्वांटिटी, क्वालिटी और अफोर्डेबल प्राइस, इसको इंश्योर करना है. और ये इंश्योर करने से क्या होगा? लाइफ विद डिग्निटी इंश्योर होगा. नाउ कवरेज, कौन कौन को कवरेज आ रहा है इसके अंदर? 75% ऑफ रूरल पॉपुलेशन. ध्यान रखना ये लीगल एंटाइटलमेंट है. लीगल एंटाइटलमेंट मतलब ये एक्ट है, पार्लियामेंट ने पास किया है, तो ये एक्ट है सारा. एग्जीक्यूटिव ने नहीं डिसाइड किया है, पार्लियामेंट ने डिसाइड किया है. एग्जीक्यूटिव कानून लेकर आया और पार्लियामेंट ने पास किया इसको. तो कवरेज इसका क्या है? 75% ऑफ रूरल पॉपुलेशन. तो रूरल पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 75% बिकॉज मोस्टली पुअर पीपल आर रिजाइडिंग इन रूरल एरियाज. एंड अप टू 50% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन. तो अर्बन पॉपुलेशन का 50% और 75% ऑफ रूरल पॉपुलेशन को कवरेज देना ही है इसके अंदर. ठीक है, फॉर रिसीविंग सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स अंडर टारगेटेड पीडीएस. टारगेटेड पीडीएस के अंदर सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन देने. किसको? याद रखना, 75% रूरल पॉपुलेशन और 50% अर्बन पॉपुलेशन. नाउ बिलो पॉवर्टी लाइन जो है वो इंडिया में करीब 22-23% ही है, मतलब ऑलमोस्ट बिलो 1/4. इंडिया की पॉपुलेशन का बिलो 1/4 जो है वो भी पुअर है, बिलो पॉवर्टी लाइन है. बट स्टिल इसके अंदर जो कवरेज है वो बहुत ज्यादा है. इसका मतलब अबव पॉवर्टी लाइन को भी कवरेज दे रहे हैं. ओवरऑल नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कैटर्स टू 67% ऑफ टोटल पॉपुलेशन. वो इसका एवरेज हो गया 67% ऑफ टोटल पॉपुलेशन. ठीक है, तो ओवरऑल पॉपुलेशन का अभी थोड़ी देर पहले बताया था 67 ओवरऑल का है और 75% रूरल और 50% अर्बन. ठीक है. नाउ एलिजिबिलिटी, एलिजिबल कौन कौन है? ठीक है, प्रायोरिटी हाउस होल्ड टू बी कवर्ड इन द टीपीडीएस. प्रायोरिटी हाउस होल्ड याद करो, एक राशन कार्ड बनता है प्रायोरिटी हाउस होल्ड का, स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है. अब एलिजिबिलिटी आपको पता है कि
किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा इसका डिसीजन कौन लेता है? स्टेट गवर्नमेंट लेता है, हमने पहले भी देखा था। तो ये टारगेटेड पीडीएस के अंदर प्रायोरिटी हाउस होल्ड हो जाएगी अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन बाय स्टेट गवर्नमेंट गाइडेड। और हाउस होल्ड कवर्ड अंडर एग्जिस्टिंग अंत्योदय अन्न योजना, ये अंत्योदय अन्न जो 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पे चली थी। तो ये जो सारी चीजें हैं ये एलिजिबिलिटी डिसाइड करेगी, ठीक है। तो मोस्टली स्टेट गवर्नमेंट का इसमें रोल रहेगा एलिजिबिलिटी में। हाउस होल्ड कवर्ड अंडर एग्जिस्टिंग अंत्योदय अन्न हो गया, ठीक है। चले, तो ऑब्जेक्टिव ये हो गए, ये कवरेज हो गया, एलिजिबिलिटी हो गई। अब प्रोविजंस देखो, इस एक्ट में प्रोविजन क्या है। 5 किलोग्राम फूड ग्रेन्स पर पर्सन पर मंथ एट दिस राइस व्हीट कोर्स ग्रेन्स। तो राइस व्हीट कोर्स ग्रेन्स मिलेंगे 5 kg पर पर्सन पर मंथ, मतलब एक पर्सन को 5 kg तक पर मंथ मिलेगा, ठीक है। द एग्जिस्टिंग अंत्योदय अन्न योजना हाउस होल्ड विल कंटिन्यू टू रिसीव 35 kg। अब अंत्योदय अन्न के अंदर 35 kg मिल रहा था ना, वो मिलता रहेगा, उसको नहीं छेड़ा उन्होंने। मील एंड मैटरनिटी बेनिफिट ऑफ नॉट लेस देन ₹6,000, ये इंपॉर्टेंट है देखो। मील एंड मैटरनिटी बेनिफिट नॉट लेस देन 6,000 टू प्रेग्नेंट वुमेन। मतलब इस नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में प्रेग्नेंट वीमेन के लिए कुछ स्पेशल क्लॉज है। वो क्या है? नॉट लेस देन ₹6,000 टू प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड 6 months आफ्टर द चाइल्ड बर्थ, 600 कैलोरीज पर डे। तो ये कह रहा है कि आपको जो प्रेग्नेंट विमेन रहेगी, उस प्रेग्नेंट विमेन को जो बेनिफिट है ओवरऑल, वो ₹6,000 का देना है। ये प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना है, ठीक है। प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना, इस मातृवंदन योजना के अंदर 6,000 है ना, उसी को उन्होंने ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से जुड़ी हुई है। तो ₹6,000 का जो बेनिफिट है वो मातृवंदन वाला है टू प्रेग्नेंट विमेन एंड लैक्टेटिंग मदर। प्रेग्नेंट विमेन मतलब प्रेगनेंसी में जब आपका जब जेस्टेशन पीरियड चल रहा होगा 9 months का, एंड लैक्टेटिंग मतलब बेबी के बर्थ के बाद 6 months तक, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड 6 months आफ्टर द चाइल्ड बर्थ। तो इस 9 months ये और 6 months वो, 9 and 6 15 months, इस 15 months तक आपको 600 कैलोरीज पर डे जो है वो आपको एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। किसके अंडर? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर। कौन? जो प्रेग्नेंट विमेन और लैक्टेटिंग मदर रहेगी उनको 600 कैलोरीज पर डे, ठीक है। इतना उनको एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। किसके अंडर? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है। मील्स फॉर चिल्ड्रन अप टू 14 years ऑफ एज। अब ये चिल्ड्रन के लिए 14 years एज है, ये मिड डे मील के अंडर आ गया। आपको पता है मिड डे मील में क्या होता है? मिड डे मील में स्कूल्स में जो बच्चों को खिलाया जाता है खाना वगैरह, वो अप टू 14 की एज क्या हो गया मिड डे मील के लिए। फॉर पर्पज ऑफ इशूइंग राशन कार्ड, द एल्डेस्ट वुमेन ऑफ हाउस होल्ड एज 18 years और अबव वुड बी कंसिडर अहेड। तो ये जो राशन कार्ड इशू होगा इसके नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर, जिसमें भी आपकी एलिजिबिलिटी आ रही होगी, इसमें आपको क्या मिलेगा? जो एल्डेस्ट विमेन होगी, घर की जो सबसे बुजुर्ग महिला होगी, उस बुजुर्ग महिला जो कि 18 से प्लस होनी चाहिए डेफिनेटली, कंसिडर्ड हेड, वो घर की क्या रहेगी? हेड रहेगी, ठीक है। विमेन की बात हो रही, गर्ल्स की बात नहीं हो रही, ध्यान रखना। एल्डेस्ट विमेन नॉट गर्ल, ठीक है। गर्ल भी बन ही सकती है, ऐसा नहीं, कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है। बट यूजुअली ये होता है ना, जैसे अगर कोई आपकी सिस्टर है, वो बड़ी है, 18 प्लस है, 21 22 है, ठीक है। तो अगर घर में कोई विमेन है डेफिनेटली, अगर तो उसको एल्डेस्ट को कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। माँ हो सकती है, दादी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। एल्डेस्ट की बात हो रही है, यंगेस्ट की बात नहीं हो रही है। फूड सिक्योरिटी अलाउंस टू बेनिफिशियरीज इन केस ऑफ नॉन सप्लाई ऑफ एंटाइटल्ड फूड ग्रेन्स और मील्स। फूड सिक्योरिटी अलाउंस, सॉरी ये क्या हो रहा है? बाली नहीं जाना अभी मुझे। फूड सिक्योरिटी अलाउंसेस, फूड सर सिक्योरिटी ये एल्डेस्ट वाला पॉइंट और एक बार बोलेंगे? लास्ट वाला। हाँ एल्डेस्ट वाला। कुछ नहीं, घर में सबसे बड़ी जो विमेन होगी ना, सबसे बड़ी महिला, उसके नाम पे राशन कार्ड बनेगा, ठीक है। पर्पज ऑफ इशूइंग राशन कार्ड, द एल्डेस्ट वुमन ऑफ हाउस होल्ड वुड बी कंसिडर्ड एज हेड। तो हेड ऑफ द फैमिली विमेन को माना जाएगा इसमें, ओके, जो भी एल्डेस्ट विमेन रहेगी घर में। फूड सिक्योरिटी अलावेंसेस मतलब अगर इन केस में आप एलिजिबल हो और आपको फूड ग्रेन्स नहीं मिल पाए, तो फिर गवर्नमेंट एंड आपको क्या देगी? फूड सिक्योरिटी अलाउंस देगी, आपको अलाउंस देगी, पैसे देगी, अगर नहीं दे पाई गवर्नमेंट तो। मतलब ये लीगल एंटाइटलमेंट है, ठीक है। आप कोर्ट जा सकते हो अगर गवर्नमेंट आपको एलिजिबल हो और आपको राशन नहीं मिल पाए। फूड सिक्योरिटी अलाउंसेस टू बेनिफिशियरीज इन केस ऑफ नॉन सप्लाई ऑफ एंटाइटल्ड फूड ग्रेन्स और मील्स। सेटिंग अप ऑफ ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म एट डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल। ये तो ठीक है, हर डिस्ट्रिक्ट पे इसका ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म बना हुआ है। मतलब कोई भी आपकी कंप्लेंट होती है किसी भी कंज्यूमर को, तो वो वहां जा सकता है।
और स्टेट लेवल पे भी बनता है, जो सबको क्या करता है, कंट्रोल करता है। समझ गए सर? सो प्रेग्नेंट women and lactating women, okay, so this is your National Food Security Act. Now do this question, 1 minute. सर अलाउंस कब मिलती है? अलाउंस, हाँ, फूड सिक्योरिटी अलाउंस कितनी मिलती यस है? सर, पता नहीं, वही पूछ रहा हूँ, आखिरी वाला स्टेटमेंट। फूड सिक्योरिटी अलाउंस जो है वो मिलेगा आपको अगर आपको फूड ग्रेन्स नहीं मिल पाया, ठीक है। अगर मैं एलिजिबल हूँ और मुझे वो नहीं दे पाए तो फिर वो मेरे को अलाउंस देंगे, मतलब वही पैसा देंगे मेरे को, ताकि मैं बाहर ओके से खरीद के खा पाऊँ। ठीक है, फूड सिक्योरिटी अलाउंस वही है। इस क्वेश्चन को करो जल्दी से। टू 2018 की प्रीलिम्स में आया हुआ क्वेश्चन ये। हो गया? यस। एक ही जन ने तो आंसर दिया। नहीं, बहुत जरूरी दिया है। ओके ओके, ए बी, बी, ए भी दिया है कुछ लोगों ने, बी भी दिया है कुछ लोगों ने। सरस्वती और यूनुस ने ए दिया है, स्वाति, जॉय, सहरा, सोनल, प्रीतम सबने बी दिया है। हाँ जी, तो चेक करते हैं। With reference to the provision made under the National Food Security Act 2013, consider the following statement. First, the families coming under the category of below poverty line only are eligible to receive subsidized food grains. ये तो भैया गलत स्टेटमेंट है, बिकॉज बिलो पॉवर्टी लाइन तो करीब करीब 20-22% ही है, बहुत कम है। ओनली आर एलिजिबल टू रिसीव सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन, नहीं, अबव पॉवर्टी लाइन को भी मिलता है। ऑलमोस्ट 67% ऑफ पॉपुलेशन इज एलिजिबल टू रिसीव द सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ओनली बोला है, ओनली थोड़ा एक्सट्रीम भी हो गया है, थोड़ा नहीं है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम नहीं है, थोड़ा सा है। सो दिस इज रॉन्ग। The eldest women in the household of age 18 year or above shall be the head of the household for the purpose of issuance of ration card. ये तो अभी बताया जस्ट, ये ट्रू है। Second is true. The pregnant women and lactating mothers are entitled to a take-home ration of 1600 calories per day during pregnancy and for 6 months thereafter. ये तो ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और 6 months, 15 months टोटल हो गए। टेक होम राशन भी ठीक है, एडिशनल मिलता है उनको। प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग भी ठीक है। यहाँ गड़बड़ हो गई, 1600 कैलोरीज बोल रहा है, 600 ही होता है ना? 600 से, हाँ। हाँ, तो ये गलत हो गया। तो इसमें तो सिर्फ 2 ही सही है, द एल्डेस्ट वुमेन इन हाउसहोल्ड वाला, इसका मतलब बी सही है। ठीक है, तो ए को सही किसने बताया भाई? मिस्टर यूनुस। ए कैसे सही है? ए
ये गलत है ना? I know I'm presenting to everyone. Don't poke me. Okay. India slips to 107th place. तो हमने अभी इसमें देखा था कि 101 पे था 21 में, बट 22 का जो रिसेंट रेटिंग है, इंडिया स्लिप्स टू 107th प्लेस। मतलब इंडिया का जो रेटिंग है वो 101 से 107 मतलब और नीचे चला गया, ठीक है, और नीचे चला गया है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, विच इज क्वाइट वरीसम सिचुएशन। इसमें आप देखेंगे कि इंडिया 107 पर है, पाकिस्तान इंडिया से थोड़ा ऊपर है, बांग्लादेश भी ऊपर है, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, ये सब तो काफी ऊपर है इंडिया से फूड सिक्योरिटी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, ठीक है। यहाँ हंगर कम एज कम्पेयर टू इंडिया, ऐसा इस मैकेनिज्म से कहा जाता है। अभी ये भी चल रहा है कि कई सारे ग्लोबल इंडेक्सेस हैं जिनका जो मैकेनिज्म है उसके साथ इंडियन जो डिस्पेंसेशन है वो कन्फ्रंटेशन में है कि आपके मैकेनिज्म्स जो हैं वो कहीं ना कहीं सही नहीं है, ठीक है। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज या फिर जो साउथ इंडियन कंट्रीज हैं उनके साथ पार्शलिटी करते हैं, इस तरह की बात भी चल रही है, बट हमें उसमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। इस तरह की चीजें यूपीएससी नहीं पूछता। तो ग्लोबल स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी, इसमें आप देखेंगे कि बेस्ट परफॉर्मर जो है ये ग्रीन कंट्रीज हैं, ठीक है। ग्रीन कंट्रीज में आपको याद रखिए स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, ये काफी अच्छी परफॉर्मेंस देती है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज ये नॉर्वे और ये, ओके, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, ये काफी अच्छा, उनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी बहुत अच्छा रहता है। फिर आती है गुड परफॉर्मेंस। गुड परफॉर्मेंस में देख रहे हो ये पूरा रशिया हो गया, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ब्राजील, पेरू, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा एंड दीज कंट्रीज, ओके। मोरक्को, सऊदी अरेबिया, दीज कंट्रीज आर गुड परफॉर्मेंस। मॉडरेट परफॉर्मेंस में इंडिया मॉडरेट में आ रहा है, इंडिया, पाकिस्तान, ओके, दीज आर मॉडरेट, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ASEAN countries mostly, okay. South Africa is also there. Need improvement की किनको जरूरत है? ये देखो, ये मडागास्कर है, फिर इधर जो कंट्रीज हैं, ये जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं जो दिक्कत में है काफी, जिबूती वगैरह, ठीक है। नाउ कम द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। ये एक इंपॉर्टेंट स्कीम है, बहुत पुरानी स्कीम है, करीब 50 साल से ज्यादा पुरानी है, ठीक है। करीब 50 साल के आसपास हो गए, मतलब हुए नहीं पूरे। तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, हमारा मेन एम क्या है? नेशनल फूड सिक्योरिटी का भी मेन एम यही था कि मलनरिशमेंट को दूर करना है। तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम में चाइल्ड डेवलपमेंट पे आपको फोकस करना है, बट चाइल्ड के साथ साथ ये विमेन पे भी फोकस करते हैं। तो ICDS इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। 1975 में ये लॉन्च हुई थी। तो इसके अंदर 4 स्कीम्स है, मतलब इस ICDS के अंदर 4 स्कीम्स है। 4 स्कीम्स में पहली स्कीम है आंगनबाड़ी सर्विस स्कीम। आंगनबाड़ी आपने देखा होगा, आंगनबाड़ी सेंटर होता है छोटा सा, ठीक है, काइंड ऑफ क्रैश, ठीक है। तो उस आंगनबाड़ी सेंटर में क्या होता है, आपको कुछ फैसिलिटीज मिलती है। तो वो फैसिलिटीज क्या है? यूनिक प्रोग्राम फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर। नाउ अर्ली चाइल्डहुड केयर इज द मेन एम एंड डेवलपमेंट। द बेनिफिशियरीज अंडर द स्कीम आर चिल्ड्रन इन द एज ऑफ 0 to 6। तो 0 to 6 ईयर्स के चिल्ड्रन के लिए ही आंगनबाड़ी, आपके नियरेस्ट जो आंगनबाड़ी सेंटर होता है छोटा सा, उस पर आप जा सकते हो अपने छोटे बच्चों को लेके। वहां आपको बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स का बेनिफिट मिलता है। तो 0 to 6 ईयर्स के लिए बच्चे, प्रेग्नेंट विमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स, ओके। तो 3 ग्रुप है यहाँ पे, 0 to 6 ईयर्स के बच्चे हैं, प्रेग्नेंट विमेन है और लैक्टेटिंग मदर है। तो इसको आप ये फोकस कर सकते हो कि अर्ली चाइल्डहुड केयर है। चाइल्डहुड केयर में ये हो गया कि बच्चे का तो ध्यान रख रहे हो, जो प्रेग्नेंट विमेन है, बिकॉज वाइल प्रेगनेंसी यू नीड टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ओके। तो विमेन को बहुत ध्यान रखना पड़ता है अपनी, जो अगर अच्छा न्यूट्रिशन फूड उनको मिलेगा तो डेफिनेटली दैट विल इम्पैक्ट द हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन, हेल्थ ऑफ द चाइल्ड, सॉरी, चिल्ड्रन मतलब सारे होंगे तो चिल्ड्रन भी होंगे। तो प्रेग्नेंट विमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स हैं। इट प्रोवाइड्स अ पैकेज ऑफ 6 मोस्टली सर्विस। 6 सर्विसेज कौन सी मिल रही है आंगनबाड़ी में? आपको सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन मिलेगा, डेफिनेटली। न्यूट्रिशन के लिए आपको कुछ क्या देंगे? सप्लीमेंट्स देंगे, कुछ टैबलेट्स भी देंगे आपको। प्री स्कूल नॉन फॉर्मल एजुकेशन। अब जब 0 से 6 ईयर्स का बच्चा है, क्योंकि 6 ईयर्स के बाद ही यूजुअली माना जाता है कि स्कूल जाएगा, ठीक है। तो 0 से 6 ईयर्स में 2 साल का 3 साल का रहेगा, तो उसके लिए वहाँ एक क्रैश की तरह काम होगा और उनको नॉन फॉर्मल एजुकेशन उसको वहाँ पे मिलेगी। न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन डेफिनेटली इनको दिया जाएगा, ताकि उनको पता रहेगा क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ठीक है।
और न्यूट्रिशन से रिलेटेड और अवेयरनेस रहेगी। इम्यूनाइजेशन जो मोस्टली क्या बोलते हैं वैक्सीनेशन है, ठीक है, वो वैक्सीन जो है वो आंगनबाड़ी सेंटर्स पे आपको लगा दिए जाते हैं, उससे रिलेटेड जानकारी भी आपको मिल जाती है, तो इम्यूनाइजेशन हो जाता है। हेल्थ चेकअप्स हो जाते हैं, बेसिक हेल्थ चेकअप हो जाता है इन लोगों का। रेफरल सर्विसेज हो जाती है, उनका बेसिक चेकअप करके उनका डेटा कलेक्ट करके अगर उनको रेफरल करना होता है तो रेफर कर सकते हैं। तो ये जो कुछ 6 इंपॉर्टेंट सर्विसेज है ये आंगनबाड़ी सेंटर में प्रोवाइड होती है। और आंगनबाड़ी सेंटर जो है वो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको ये जरूर पता रखना है, क्योंकि आईसीडीएस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव आपका होना चाहिए कि विमेन के बेटरमेंट के लिए। खास तौर पे अगर आप देखोगे कि मैटरनिटी बेनिफिट्स जो है विमेन के लिए, या ऐसा देखोगे कि जो मैटरनल मॉर्टेलिटी होती है, विमेन की जो डेथ हो जाती है वाइल प्रेगनेंसी, मतलब कुछ जेस्टेशन का जो जो जेस्टेशन पीरियड में कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है तो उनको दिक्कत आती है, उनकी डेथ हो जाती है। कई बार वाइल डिलीवरिंग द बेबी उनकी डेथ हो जाती है, बिकॉज इंडिया में अभी तक भी कई सारे रूरल एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे या तो क्योंकि वो स्टिल अभी कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल जो बेबी डिलीवरी मैकेनिज्म है उन्हीं पे अभी तक डिपेंडेंट है, ठीक है। और पहला दूसरा ये है कि उनके पास एक्सेसिबिलिटी भी नहीं है, हो सकता है प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर आसपास अवेलेबल नहीं हो, और जब वो जो एक इमीडिएट टाइम आता है उस समय जब वाटर ब्रोक और वो सब चीजें होती है, तो उस समय उनको बहुत जल्दी मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत होती है, बट वो अवेलेबल नहीं होता कहीं पर। तो इस वजह से भी क्या होता है, कहीं ना कहीं जो बेबी डिलीवरी का जो पूरा प्रोसेस होता है वो प्रॉपरली हाइजीन में और सब चीजें मेंटेन करके नहीं हो पाता, एक्सपर्ट्स की निगरानी में भी नहीं हो पाता। तो ऐसे केस में पॉसिबिलिटी है कि जज्जा बच्चा दोनों, मतलब जो मदर है और जो चाइल्ड डिलीवर होने वाला है, उन दोनों की लाइफ कहीं ना कहीं क्या रहती है, खतरे में रहती है। तो इस चीज को कम करने के लिए जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को गवर्नमेंट ने क्या दिया है, बढ़ावा दिया है। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ावा कैसे दिया है, कि गवर्नमेंट ने जननी सुरक्षा योजना चलाई, उसमें उन्होंने कैश इंसेंटिव देना स्टार्ट किया कि अगर आपका बेबी जो है इंस्टीट्यूशनल में डिलीवर होगा तो उसके लिए फ्री एम्बुलेंस गवर्नमेंट मुहैया कराएगी, वहां पे पूरा जो काम होगा उसके बाद आपको बेबी डिलीवरी के बाद आपको गवर्नमेंट क्या करेगी, एक कैश इंसेंटिव देगी, ठीक है। इससे कहीं ना कहीं जननी सुरक्षा योजना और ये जो मातृवंदन योजना, इस तरह की स्कीम्स आने के बाद कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ावा मिला, और उससे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट भी देख सकते हो कि बच्चा और जो जननी और शिशु दोनों, ठीक है, तो मैटरनल मोर्टेलिटी और चाइल्ड मोर्टेलिटी दोनों ही कहीं ना कहीं क्या होगी, डाउन हुई दोनों की रेट्स, ठीक है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इस तरह की स्कीम्स भी चलाती है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द विमेन एंड द चिल्ड्रन ऑल्सो। तो चिल्ड्रन और विमेन दोनों जो है उनको स्पेशल अटेंशन चाहिए होता है। तो ये जो स्कीम्स हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके अलावा कुछ और भी स्कीम्स गवर्नमेंट की आप देखेंगे जब आप पढ़ेंगे तो, ठीक है, नई स्कीम्स भी आती है, कुछ सेट ऑफ स्कीम्स जो ऑलरेडी चल रही है उनके साथ नई स्कीम्स। उसके बाद while writing your mains answer you need to mention all these things, ठीक है। आपको पता होना चाहिए गवर्नमेंट इस पे ऑलरेडी काम कर रही है, पॉसिबिलिटी इंटरव्यू में भी आपको पूछ ले, ठीक है, कि अभी गवर्नमेंट इस बारे में क्या कर रही है, या फिर बेटरमेंट के लिए, विमेन बेटरमेंट के लिए, या फिर हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड क्या इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिए हैं। तो डेफिनेटली आपके पास एक आंसर होना चाहिए, और ये कहीं ना कहीं आपके आंसर को क्या करेगा, अच्छा, बेहतर और क्वालिटेटिव बनाएगा। तो आंगनवाड़ी सर्विसेज जो है इंडिया में 75 से चल रही है, और ये तीनों ग्रुप जो है प्रेग्नेंट विमेन, लैक्टेटिंग एंड 0 to 6 ईयर्स को ये बेनिफिट्स वहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इम्यूनाइजेशन वहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है कि भाई टीकाकरण की सुविधा भी वहाँ पे, वैक्सीनेशन भी अवेलेबल रहता है। देन यू कैन सी प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना, इसका नाम जो है चेंज हो गया बाद में, पहले इसका नाम कुछ और था, बट अभी करंट नाम इसका मातृवंदन योजना है। मातृवंदन योजना में कैश इंसेंटिव मिलता है ₹6,000 इन 3 इंस्टॉलमेंट डायरेक्टली टू द बैंक डिपॉजिट, मतलब ये डीबीटी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, उनको कैश नहीं दिया जाता, उनके अकाउंट में जाता है डायरेक्ट। ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर इन डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मोर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेटिंग इन रेस्पॉन्स टू इंडिविजुअल फुलफिलिंग स्पेसिफिक कंडीशन। मतलब वही स्पेसिफिक कंडीशन का मतलब वही है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होनी चाहिए, या फिर अगर आपको हो सकता है कि गवर्नमेंट लिस्ट इस तरीके से कर रही है कि आपको किसी कैटेगरी स्पेसिफिक को कोई फायदा दे रही है, हो सकता है कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन है सिर्फ उन्हीं को फायदा दे रही है, हो सकता है कि गवर्नमेंट सिर्फ SC/ST सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन या OBC सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को ही फायदा दे रही है, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो कुछ सर्टन सेट ऑफ एलिजिबिलिटीज हैं, अगर आप उनको फुलफिल कर रहे हो देन डेफिनेटली यू विल गेट द ₹6,000, ये जो है कैश डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर।
नाउ द थर्ड इज द नेशनल क्रैश स्कीम। क्रैश स्कीम क्या होता है? क्रैश वो जगह होती है यहाँ पे छोटे बच्चों को आप छोड़ के जाते हो, ठीक है, 6 महीने से लेके 6 साल के बच्चों को छोड़ के जाते हो। ये वर्किंग विमेन के लिए फैसिलिटी होती है, क्रैश फैसिलिटी, ठीक है। वर्किंग विमेन मतलब क्या है कि 6 साल के तक के जो बच्चे होते हैं उनको डेफिनेटली आप अकेला नहीं छोड़ सकते, उनके लिए स्पेशल केयर की जरूरत होती है। और जो वर्किंग विमेन होती है वो हर समय बच्चे के साथ नहीं रह सकती, क्योंकि बच्चे के साथ हर समय रहेगी तो फिर काम कैसे कर पाएगी, ऑफिस ले जा नहीं सकती उनको। तो कहीं ना कहीं जो मदरहुड है वो उनके लिए एक हर्डल ना बने, कि मदरहुड उनके करियर के आगे हर्डल ना बने, इसलिए क्रैश की सुविधा होती है, ताकि आप जॉब पर जाओ उस समय बच्चों को आप वहां छोड़ के चले जाओ और बच्चों की वहां पे अच्छे से टेक केयर की जाती है, ठीक है। दैट्स द नेशनल क्रैश स्कीम। तो 6 महीने से लेके 6 ईयर तक के जो वर्किंग वुमेन के बच्चे होते हैं उनका वहां ध्यान रखा जाता है, ठीक है। ये 7.5 घंटे के लिए फैसिलिटी है। 7.5 घंटे सफिशिएंट टाइम होता है एक, अगर आप अपना जॉब करते हो तो 26 डेज अ मंथ अवेलेबल होती है, ठीक है। और यहाँ पे चिल्ड्रन जब रहते हैं तो उनके लिए सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर और हेल्थ, ये स्लीपिंग फैसिलिटी, ये सारी होती है वहाँ पे, ठीक है। सोने बच्चा सोना चाहे तो सुला देते हैं, तो यहाँ पे ये क्रैश स्कीम होती है। फोर्थ इसमें है एडोलेसेंट गर्ल। एडोलेसेंट गर्ल मतलब 11 to 14 ईयर के एज ग्रुप को एडोलेसेंट कहते हैं, ठीक है। एडोलेसेंट गर्ल्स को थोड़ा स्पेशल केयर की जरूरत होती है, बिकॉज यही वो टाइम होता है जब उनमें प्यूबर्टी का टाइम होता है, ठीक है। तो उस समय डेफिनेटली उनके लिए कहीं ना कहीं अवेयरनेस की जरूरत होती है, और हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं, और उस हार्मोनल चेंजेस की वजह से उनमें न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स भी उनकी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं स्पेशल केयर की जरूरत होती है इस एज ग्रुप को। तो न्यूट्रिशनल और नॉन न्यूट्रिशनल सारी चीजों की जानकारी वहां दी जाती है, ठीक है। तो दैट इज द स्कीम फॉर द एडोलसेंट गर्ल्स, ओके। तो बेसिक लाइफ स्किल उनको बताएंगे, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन है, हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में बताएंगे, एजुकेशन के बारे में बताएंगे, ठीक है। इंडियन सोसाइटी इज नॉट लिबरल एक्चुअली, ओके। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी लिबरल, बट इंडियन सोसाइटी इज गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ becoming liberal, because sometimes there are so many very generic issues, there are very general issues, they are very much have very much relevance in our life, and which are inevitable part of our life, but Indian society is very reluctant to talk about it. They still consider them as a taboo subjects, okay. Like for example, the menstrual cycle of girls, it's a very natural thing, but still that the society considered it as taboo, ओके। एक मूवी भी आई थी इस पे ना, कौन सी मूवी थी, अक्षय कुमार की, दैट पैडमैन, ओके। सो अगर पैडमैन आपने देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि कितना रिलक्टेंस होता है, ओके, और कितना इसको टैबू सब्जेक्ट माना जाता है। द पीपल जस्ट हाइड दीज थिंग्स एंड दे डोंट यूजुअली टॉक अबाउट इट इन ओपन सोसाइटी, जबकि वो बहुत नेचुरल चीज है। तो जब व्हेन यू डोंट टॉक अबाउट दीज थिंग्स, देन समवेयर कहीं ना कहीं उसके एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो सोसाइटी में बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। जैसे विमेन को डेफिनेटली हाइजीन और सैनिटेशन की वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हो जाती है, ठीक है। तो वो वाली बात है। तो इंडियन सोसाइटी इज काइंड ऑफ यानी वेरी, जो ट्रेडिशंस हैं वो थोड़ी सी ऑब्सक्यूरेंटिस्ट हैं, थोड़ी कंजर्वेटिव जो सोसाइटी के सेक्शन होते हैं, दे डोंट टॉक अबाउट दीज थिंग्स। बट जो नेचुरल चीजें उन पे तो डेफिनेटली बात होनी चाहिए। वी शुड नॉट गो ऑन द पाथ ऑफ द वेस्टर्नाइजेशन ब्लिटेंटली, ओके। बट स्टिल मॉडर्नाइजेशन की तरफ हमको जाना ही चाहिए, नॉट वेस्टर्नाइजेशन, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, ओके। वी शुड नॉट ब्लिटेंटली अडॉप्ट द प्रैक्टिसेस ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड, नो, okay. That doesn't mean if West is adopting something, doesn't mean that's modern and advanced, no. We must do the appraisal of those things, those practices, okay. So modernity is different than the westernization, so we must go on the path of modernization rather than westernization, okay. So that's the scheme for the adolescent girls. So they will be provided with all this information. So you can see the umbrella ICDS, Anganwadis, adolescent girls, child protection services, that is, and the national crash scheme. Matru Vandan is there. And Mission Poshan and Saksham Anganwadi, these are some of the things you can read on your own, okay. Slide down the isme. Now पोषण अभियान is one of them. न्यूट्रिशन एक स्कीम है, इसका फुल फॉर्म है, पोषण एक एक्रोनिम है, पीएम ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट, ओके। न्यूट्रिशन के लिए है, इसमें स्कीम इंप्रूव द न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन, एडोलेसेंट गर्ल, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स।
This is the vulnerable group actually. Okay, children are vulnerable. They need special attention. Adolescent girls are also need a special attention. Pregnant women, lactating mothers. Okay, and at that and women are per se not vulnerable, but when they are in this condition, they need special attention. They need special care. So these are the things, Anganwadi centers and all these. Now we can see the midday meal scheme is there. Midday meal scheme is the स्कूल्स में जो बच्चों को खाना खिलाया जाता है मिड डे मील. 1995 में कुछ पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था लिमिटेड प्राइमरी स्कूल्स में. ठीक है, 2001 में यूनिवर्सल हो गया, सारे गवर्नमेंट एडेड और गवर्नमेंट स्कूल्स में स्टार्ट हो गया. 2007 में अपर प्राइमरी पे भी स्टार्ट हो गया, मतलब पहले कक्षा 5 तक के बच्चों को खिला रहे थे, फिर उन्होंने कहा कि नहीं 5 तक नहीं 8 तक खिलाओ, मतलब 8th क्लास तक के बच्चों को अभी खिलाया जाता है, मिड डे मील दिया जाता है ताकि उनको. अब मिड डे मील की जो पर्पसेज है बहुत सिंपल है, 2-3 पर्पसेज है. पहला तो ये है कि स्कूल जो आने वाले बच्चे हैं डेफिनेटली उनका एनरोलमेंट बढ़ जाएगा, बिकॉज पुअर पॉपुलेशन है. इफ दे विल नो दैट द फूड जो है वो अवेलेबल है स्कूल में, तो डेफिनेटली एक तो बेसिक है कि एनरोलमेंट उनका बढ़ेगा. दूसरा क्या है कि जब उनको फूड प्रोवाइड होगा तो कहीं ना कहीं जो एक न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है वो बच्चों को मिल पाएगी. ठीक है, क्योंकि घर में हो सकता है बिकॉज पुअर पीपल गवर्नमेंट स्कूल में मोस्टली जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं वो जा रहे हैं. ठीक है, बिकॉज इंडिया में आपको पता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स जो है बहुत ज्यादा अभी तक उस लेवल पे नहीं है. ठीक है, प्रॉब्लम्स हैं गवर्नमेंट स्कूल्स की काफी, और डिमांड एंड सप्लाई में जो है प्रॉब्लम है, क्वालिटी के इश्यूज है, बहुत सारे इश्यूज है. तो कहीं ना कहीं अगर बच्चे जो पुअर पॉपुलेशन के हैं वो गवर्नमेंट स्कूल्स में फीस नहीं लग रही है तो उनके लिए एक एजुकेशन जो है वो अफोर्डेबल बना दी गई है कि नहीं फीस नहीं ली जा रही, उनसे फीस नहीं ली जा रही, पुअर पॉपुलेशन आ रही है तो उनको न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के फॉर्म में मिड डे मील भी प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि एक न्यूट्रिशन सिक्योरिटी भी उनको मिल पाए, जो घर में उनको नहीं मिल पा रहा वो बेटर खाना उनको यहाँ मिल पाएगा. ठीक है, तो ये 2007 में अपर प्राइमरी मतलब 8th क्लास के बच्चों तक भी गया. 2009 में राइट टू एजुकेशन, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 में एक एक्ट आया था, राइट टू एजुकेशन. ठीक है, उस राइट टू एजुकेशन के बाद इंक्लूडेड प्रोविजंस ऑफ द किचन इन एवरी स्कूल फॉर कुकिंग मिड डे मील. ठीक है, 2009 में उन्होंने किचन भी कर दिया कि मस्ट होना चाहिए परमानेंट. 13 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आ गया तो उन्होंने बोला कि अप टू 14 ईयर्स के लिए जो है फ्री कुक्ड हॉट मिड डे मील इन स्कूल्स. ठीक है, तो फूड सिक्योरिटी एक्ट में 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री कुक्ड हॉट मिड डे मील होना चाहिए. ठीक है, ये इसकी टाइमलाइन है मिड डे मील की. न्यूट्रिशन नॉर्म्स क्या है? न्यूट्रिशन नॉर्म्स ये है, प्राइमरी स्कूल का बच्चा जो है, प्राइमरी 5वीं तक का बच्चा, 450 कैलोरी उसको डेली देना है. 12 ग्राम उसको क्या देना है? प्रोटीन देना है. 700 कैलोरी उसको देना है अपर प्राइमरी वाले को, 20 ग्राम उसको प्रोटीन देना है. ये इसकी मिड डे मील के अंदर रिक्वायरमेंट है. ये तो कैलोरी के हिसाब से रिक्वायरमेंट है. अगर आप ऐसे चलेंगे तो आप देखेंगे कि प्राइमरी के लिए, अपर प्राइमरी के लिए फूड ग्रेन्स जो इसको 100 ग्राम तक है, 150 ग्राम है. 20 ग्राम तक पल्सेस देना है. ठीक है, 30 ग्राम तक ये देना है. 50 ग्राम ये नहीं पूछते, डोंट वरी, इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाते. वो कैलोरी वाला वैल्यू जो पूछ लिया था उस वाले क्वेश्चन में, ये भी थोड़ा एक्सेप्शनल काइंड ऑफ ही था, बट स्टिल इससे क्वेश्चन सही गलत होने का बहुत ज्यादा रहा था. ठीक है, कहीं उस समय कई लोग इसको ठीक करके आए थे, बिकॉज उनको ये आइडिया तो था सबको कि प्रेग्नेंट वुमेन लैक्टेटिंग मदर को टेक होम राशन मिलता है. ठीक है, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और 6 मंथ्स ये भी उनको पता था, बट ये 1600 कैलोरीज पे थोड़ा कंफ्यूजन था. बट अगर आप कोई थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि 1600 कैलोरीज बहुत ज्यादा होता है. ठीक है, और ये एक इनेबलिंग प्रोविजन है, आप ऐसा नहीं कि पूरा ही उनको वहीं से दे दो. ठीक है, कहीं ना कहीं 1600 कैलोरी बहुत ज्यादा है, तो इसलिए इसको इस हिसाब से आप थोड़ा गलत कर सकते हैं. तो थोड़ा आप अपना कॉमन सेंस भी लगा के क्वेश्चन को कर सकते हैं. तो मजाक नहीं करना है चीजों को ना, कि सबका ये याद कर रहे हो किसको कितना दे रहे हैं. नाउ कम्स द एग्रीकल्चरल सब्सिडीज. एग्रीकल्चर सब्सिडी हमने देखा है, आप सीधा नीचे आओ. एग्रीकल्चर सब्सिडी आपको क्या होती है पता है ना? गवर्नमेंट फाइनेंशियल सपोर्ट है. सब्सिडी तो हम बता चुके हैं क्या होती है. इसको देखो ध्यान से, सब्सिडी बिल ट्रेंड. मेन दिक्कत यहाँ है 19-20, 20-21 और 21-22. 21-22 की बात कर रहे हैं. फूड सब्सिडी जो थी 19-20 में 108688, ठीक है, करीब 1 लाख थी. 1 लाख ये करोड़ है ना. ठीक है, 1 लाख करोड़. 20-21 में ये 4,22,000 हो गई. क्यों हुई ये?
बिकॉज उस समय लॉकडाउन चल रहा था और जो आत्मनिर्भर भारत वगैरह चला था उसमें बहुत ज्यादा फूड ग्रेन्स क्या हुए थे, डिस्ट्रीब्यूट हुए थे, इसलिए फूड सब्सिडी बहुत बढ़ गई थी उस टाइम। वापस ये ट्रैक पे आई, कम हुई और 242 पे आ गई, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 2,42,000 करोड़ फूड सब्सिडी, which is huge। देन फर्टिलाइजर वी नो 81 से इतना इतना, पेट्रोलियम कम है सबसे, अदर सब्सिडी। तो टोटल सब्सिडी जो है आप इधर देखोगे कि इसमें करीब 6,48,000 करोड़ हो गया था, 6.5 लाख करोड़। बहुत ज्यादा है, ठीक है। 369,899 इतना। तो सब्सिडी बिल जो है वो देखते हो आप बहुत ज्यादा है। पेट्रोल, ये तो हमने ये ग्राफ तो पहले भी देखा था हमने, ठीक है। पेट्रोलियम सब्सिडी तो बहुत कम है, ठीक है। सब्सिडी दो टाइप की, डायरेक्ट सब्सिडी, एक इनडायरेक्ट सब्सिडी। अब डायरेक्ट सब्सिडी में आप याद करो ये डायरेक्ट प्राइस सपोर्ट है काइंड ऑफ, ठीक है। तो डायरेक्ट सब्सिडी में क्या होता है ना, एक प्री डिटरमाइंड मैकेनिज्म के थ्रू आपको सब्सिडी डायरेक्ट मिल रही है, ठीक है। इनडायरेक्ट सब्सिडी में क्या होता है ना, आपको इनडायरेक्टली मिल रहा है, जैसे आपको चीपर क्रेडिट दिला दिया फॉर एग्जांपल कि आपके लिए अगर 8% नॉर्मल लोन पे क्या लग रहा था, इंटरेस्ट रेट लग रहा था, तो आपके फार्मर्स के लिए 8 की जगह 4 ही लगवा दिया, तो 4% का आपको क्या मिला, इंटरेस्ट सबवेंशन मिला। तो वो एक तरीके की इनडायरेक्ट सब्सिडी है गवर्नमेंट ने दी। गवर्नमेंट ने रिड्यूस्ड टैरिफ फॉर इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी पे नॉर्मली टैरिफ जो है वो 8 रुपए लग रहा है, ठीक है, मतलब 8 रुपीज पर यूनिट लग रहा है। पर फार्मर्स को एग्रीकल्चर में जो सप्लाई जा रही है इलेक्ट्रिसिटी की, उसको 8 रुपीज की जगह 4 रुपीज कर दिया, तो 4 रुपीज पर यूनिट पे क्या मिला, सब्सिडी मिली ना। ये इनडायरेक्ट सपोर्ट है। तो एक तो डायरेक्ट सपोर्ट हो जाता है और एक इनडायरेक्ट सपोर्ट रहता है। इनडायरेक्ट सपोर्ट में आपको जो जो इनपुट की चीजें डाल रहे हो ना, इनमें जो इनडायरेक्ट सपोर्ट दे दिया गवर्नमेंट ने, ठीक है। और डायरेक्ट सपोर्ट में आप किसी पर्टिकुलर चीज से कोई चीज खरीद रहे हो, ठीक है, तो वो आपको क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली आपको वो चीज क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड करवा रहे हैं। डीबीटी हो रहा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वगैरह, एक स्कीम है गवर्नमेंट की इसके अंडर। तो सब्सिडी आपकी दो टाइप की होगी, एक डायरेक्ट सब्सिडी होगी और एक इनडायरेक्ट सब्सिडी होगी। इनडायरेक्ट सब्सिडी में आपको ये जो चीजें मिल रही है ना, ये अदर इनडायरेक्ट बेनिफिट आपको मिल रहे हैं। याद करो WTO की सब्सिडी याद आ रही, एम्बर बॉक्स सब्सिडी, ठीक है, और ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स, भूल गए? ठीक है, दो तरह की सब्सिडी आपकी, एक डायरेक्ट सब्सिडी है और एक इनडायरेक्ट सब्सिडी। इनडायरेक्ट में आपको कहीं ना कहीं वो जो आप इनपुट ले रहे हैं उस इनपुट को कहीं ना कहीं वो सब्सिडाइज करने की कोशिश कर देंगे आपकी। अब चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम एसोसिएटेड सब्सिडी, देखो अब ये जो सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं ना, इन सारी चीजों में आपको ये है कि ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत कॉमन अंडरस्टैंडिंग है आपकी, आपको टेक्निकल ज्यादा नहीं जानना है। कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि भाई क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं और कैसे उनको बेटर बनाया जा सकता है। हाँ, कोई कमिटी का रिकमेंडेशन आता है या एक्सपर्ट रिकमेंडेशन आता है, डेफिनेटली हमको उसको कंसीडर करना है। तो चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड सब्सिडी, सब्सिडीज के साथ प्रॉब्लम क्या है? पहला, सब्सिडी इज कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन का मतलब है कि गवर्नमेंट का डोल है, डोल मतलब गवर्नमेंट ने सिर्फ डायरेक्टली आपको क्या कर दिया, वो पैसा पे कर दिया, ठीक है, पैसा पे कर दिया। तो ये एक काइंड का इनेबलिंग प्रोविजन तो है, आपने सब्सिडी देके चीजों को अफोर्डेबल तो बना दिया, बट वो एक तरीके की डोल है। डोल का मतलब है कि एग्जाम्पल के लिए ऐसा समझो कि अगर आपको, आपके पास कोई पर्सन आता है, वो पर्सन आके कहता है कि मुझे पैसे की जरूरत है, आप मुझे पैसे दे दो। तो उस पर्सन ने आपसे पैसा मांगा, आपने 100 रुपए निकाल के दे दिया, वो 100 रुपए वो लेकर चला गया, उसने अपनी इमीडिएट जो काम था वो कंप्लीट कर लिया। अब अगले दिन उसके पास वापस उसका रूटीन काम उसका स्टार्ट हो गया, उसका वो वाला काम तो हो गया। एक तो ये सिनेरियो हुआ। सेकंड सिनेरियो ये है कि वो पर्सन आता है कि यार मैं बहुत दिक्कत है, मेरे को पैसा चाहिए अभी, पैसा दे दो मेरे को। तो आपने क्या किया, उसको पैसा नहीं दिया, बट आपने उसके लिए कोई इनेबलिंग चीज बनाई। आपने क्या किया, आपने बोला क्यों, क्या काम करते हो? बोला कुछ काम नहीं करता। तो आपने बोला कि चलो ठीक है, काम करते हैं कि तुम्हारा आज का जुगाड़ नहीं करते, तुम्हारा परमानेंट क्या करते हैं, जुगाड़ करते हैं, मतलब तुम्हें इनेबल करते हैं ताकि तुम आगे वापस तुम्हें किसी से पैसा मांगने की जरूरत ना पड़े। तो आपने क्या किया, उसकी थोड़ी सी हेल्प करी, उसको एक छोटा सा बिजनेस सेट करने में हेल्प कर दिया, या फिर आपने उसको कोई वेइंग मशीन दे दी कि ये लेकर बैठो, इससे आप पैसा कमाओ। तो उससे क्या हुआ, उसको लॉन्ग टर्म के लिए एक इनेबलिंग प्रोविजन मिला, ठीक है, आपने उसको एम्पावर्ड कर दिया, ठीक है, आपने उसको यू एम्पावर्ड दैट पर्सन। तो सब्सिडी जो है एक तरीके का कॉम्पनसेशन है, वो एम्पावर्ड नहीं कर रही, बट एक तरीके की डोल है, ठीक है।
तो आपको एम्पावरमेंट की तरफ ज्यादा ध्यान देना है रादर देन कि आप टेम्परेरीली उसको उस सिचुएशन से बाहर निकालो। ठीक है, तो सब्सिडी क्या करती है, टेम्परेरीली किसान को उस सिचुएशन से बाहर निकाल देती है, और नेक्स्ट टाइम अगेन वापस जो है फार्मर उसी सिनेरियो में आ जाता है और सब्सिडी के लिए वापस खड़ा है। तो ये जो प्रोविजंस हैं, ये सारे प्रोविजंस उसको एम्पावर्ड नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक डोल है जो टेम्परेली उसको क्या कर रहे हैं, उस सिचुएशन से बाहर निकाल रहे हैं। तो आपको एम्पावरमेंट की तरफ फोकस करना चाहिए रादर देन गिविंग देम द डोल। ओके, सो सब्सिडी इज अ कॉम्पनसेशन। ठीक है, ये वही है आइडिया ऑफ सब्सिडी में कहीं ना कहीं फॉल्ट है कि आप सिर्फ वही एक पर्टिकुलर प्रेजेंट सिनेरियो से उसको क्या कर रहे हो, बाहर निकाल रहे हो। सर्वाइवल किट, हाई फिजिकल कॉस्ट। फिजिकल कॉस्ट तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के ऊपर अभी देखा मैंने कितना ज्यादा क्या पड़ रहा है, पब्लिक एक्सचेकर पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि सब्सिडी बहुत ज्यादा है। ये मोस्टली यही चीज है कि एम्पावरमेंट के प्रोविजंस पे आपको ध्यान देना है। ये जो चारों पॉइंट कह रहे हैं ना, ये घूम फिर के आपको वही लेकर जा रहे हैं। ठीक है, कि आप क्या करो, एम्पावर्ड करो उनको रादर देन कि आप उनको सिर्फ डोल दे दो। ठीक है, और प्रोडक्ट, ये डिस्टॉर्टेड प्रोडक्शन, डिस्टॉर्टेड प्रोडक्शन का मतलब है कि आपने जब सब्सिडीज बहुत ज्यादा दे रखी है, सब्सिडी ज्यादा दे रखी है आपने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर, फूड ग्रेन प्रोक्योर भी बहुत कर रखा है, तो कहीं ना कहीं मार्केट को भी क्या करोगे, डिस्टॉर्ट करोगे। मार्केट डिस्टॉर्शन जो WTO में हमने देखा है वो भी एक इशू है। तो कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो सब्सिडी सिस्टम के साथ क्या है, एसोसिएटेड है। तो इसमें कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स करने की क्या है, जरूरत है। ये सेंट्रल स्पेंडिंग तो हमने देख लिया, बार बार नहीं देखेंगे। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा चंक है जो बजट का पार्ट बनता है सब्सिडी का, आपका 9.25% ऑफ द सेंट्रल बजट का टोटल पार्ट है आपकी सब्सिडी, टोटल सब्सिडी। सिर्फ फूड और फर्टिलाइजर, टोटल भी नहीं, फूड और फर्टिलाइजर आपका 9, करीब करीब 10% आपका बजट का, जो सेंटर का बजट है उसका 10% पार्ट जो जा रहा है वो किसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है। तो क्या करना चाहिए, सब्सिडी के साथ इशू तो है, पर करना क्या चाहिए, इनोवेटिव सॉल्यूशंस निकालो। इनोवेटिव सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, नीड प्रॉपर टारगेटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है 67% पॉपुलेशन को आप सब्सिडी दे रहे हो, इतना सब्सिडी जब आप दोगे उनको तो कहीं ना कहीं पब्लिक एक्सचेकर पे तो दिक्कत होगी। तो आप प्रॉपर टारगेटिंग करो कि किन लोगों को वास्तविकता में फूड ग्रेन्स की जरूरत है और कौन लोग अफोर्ड कर सकते हैं। तो अगर आप 67 को रिड्यूस करके 40 तक ले जाओगे तो कहीं ना कहीं पब्लिक एक्सचेकर को बहुत ज्यादा क्या होगा, फायदा होगा। और उस एक्सपेंडिचर को आप अगर एम्पावरमेंट पे खर्च करेंगे, वो जो पैसा बचेगा, कि आप एम्पावर करें फार्मर्स को, बेटर कंडीशंस क्रिएट करें ताकि कि फार्मर्स को सब्सिडी की जरूरत ना पड़े, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, एक बेहतर एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव बनेगा। तो इनोवेटिव सॉल्यूशंस खोजें। रेगुलेटिंग बॉडी, ठीक है, आपका जो पीडीएस सिस्टम है उसमें आपको पता है कि लीकेजेस बहुत ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं आप उसको क्या करो, बेटर बनाओ। तो आप एक रेगुलेटरी बॉडी बनाओ, रेगुलेटरी बॉडी की प्रॉपर एक एसओपी बनाओ, एक मैकेनिज्म बनाओ, एक रूटीन उसका जो है अप्रेजल सिस्टम बनाओ। इससे क्या होगा, रूटीन अप्रेजल होने से उसके जो ड्रॉबैक्स हैं वो सामने आएंगे, कल्प्रिट्स बाहर आएंगे। अगर आप प्रॉपर चेकअप कर रहे हो, प्रॉपर इंस्पेक्शन होंगे तो। चॉइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, आपको ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन से गुड्स पे क्या देनी है, सब्सिडी देनी है। क्योंकि आपको पता है पेट्रोलियम पे भी सब्सिडी का चक्कर है, आपको पता है कि फर्टिलाइजर पे भी सब्सिडी मिल रही है, आपको पता है कि फूड क्रॉप्स पे भी सब्सिडी मिल रही है, तीनों है, तीनों बहुत बड़ा चंक है। तो फर्टिलाइजर पे आपको पता है इतना सब्सिडी दे रहा है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ये डिसाइड करना चाहिए कि सब्सिडी में कई सारे जो गुड्स हैं उनको धीरे धीरे गवर्नमेंट को हटाना चाहिए, उसको सब्सिडी के ब्रैकेट से हटाएंगे तो ऑटोमेटिक सब्सिडी का बर्डन क्या होता है, कम हो जाएगा। लेस फिजिकल स्पेस, there is a need to be very efficient and select subsidies on goods and services as there is limited overall financial support। ठीक है, वही वाली बात है जो अभी मैंने बताई। ठीक है, कि आपको कहीं ना कहीं ये डिसाइड करना है कि इसमें सब्सिडी देनी, इसमें देनी, जिसपे आप सब्सिडी देना चाह रहे हैं, आपको लग रहा है कि एसेंशियल गुड है उस पर जानी चाहिए, उस पे दो, बाकी पे मत दो। आपके फिजिकल जो जो पब्लिक एक्सचेकर पे बर्डन है वो कम हो जाएगा। जनरेटिंग मोर इनकम, अब गवर्नमेंट को डेफिनेटली, ये तो एक इंपेरेटिव बात है कि आपको ज्यादा इनकम करनी चाहिए। इनकम ज्यादा करोगे और एक्सपेंडिचर आपका सब्सिडी पे उतना ही रहेगा तो कहीं ना कहीं आप मैनेज कर लोगे। ठीक है, मतलब वो सब्सिडी दे रहे हो जितनी, और उसके कंपेरिजन में अगर आपकी इनकम बहुत ज्यादा है तो दिक्कत नहीं होगी। तो इनकम बढ़ाना तो एक है ही है।
ठीक है, आपको सोशल इम्पैक्ट्स भी इसके क्या करने चाहिए, चेक करने चाहिए कि इसका ओवरऑल सोशल इम्प्लीकेशन कितना हो रहा है। तो ये कुछ चीजें इनोवेटिव हैं जो की जा सकती हेलो सर। है। यस, सर ये जो मतलब सोल्यूशन आपने बताया, ये सब करने से प्रॉब्लम क्या आ रहा है सरकार गवर्नमेंट के सामने? प्रॉब्लम क्या आ रहा है? नहीं, गवर्नमेंट कर रही है ना, ये प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, गवर्नमेंट कर रही है। देखो जैसे रेगुलेशन बॉडी है, रेगुलेशन बॉडी जो है वो कई जगह बनी हुई है, कई जगह नहीं बनी हुई। सबसे बड़ी दिक्कत जो है ना इस पूरे पीडीएस सिस्टम में, वो दिक्कत है कि डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस जो है ना वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को मिले हुए हैं। फॉर एग्जांपल, सेंट्रल गवर्नमेंट को जो फूड ग्रेन्स प्रोक्यूरमेंट का काम है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पास रखा है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फूड ग्रेन्स को एमएसपी में प्रोक्यूर करती है, फिर सेंट्रल इशू प्राइस पे स्टेट को दे देती है। स्टेट को देने से ये होता है कि हर स्टेट का अपना अपना अलग एक मैकेनिज्म है, हर स्टेट के पास अपना अपना एक ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, वो उस हिसाब से काम करते हैं। उस ऑपरेटिंग प्रोसीजर में क्या होता है ना, जो फेयर प्राइस शॉप्स के साथ जो उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसमें कहीं ना कहीं करप्ट प्रैक्टिसेस क्या है इन्वॉल्व। उस करप्ट प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व होने की वजह से लीकेजेस हैं, और लीकेजेस हैं तो कहीं ना कहीं क्या है, नुकसान है। हमने देखा था अभी एक पहले पुराने फिगर में कि करीब करीब 2015-16 तक के आसपास जो डेटा था वो बता रहा था कि ऑलमोस्ट 40 से 45% तक लीकेजेस में वेस्ट हो रहा था, 40 to 45%। तो कहीं ना कहीं आपका जो अप्रेजल मैकेनिज्म है उसमें कहीं ना कहीं क्या है, दिक्कतें हैं। उस अप्रेजल मैकेनिज्म आपको ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि आप ठीक नहीं करेंगे तो ये जो नुकसान हो रहा है वो होता जाएगा। और आपको अपनी पॉलिसी पर्सपेक्टिव को भी थोड़ा क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। आप डोल से एम्पावरमेंट की तरफ जाओ, डोल दे दूंगा तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, वो सिर्फ ये होगा कि टेम्परेरी सॉल्यूशन दे दिया है, अगले साल फिर से वही वाली बात हो जाएगी। तो आपका सब्सिडी एक्सपेंडिचर कम ही नहीं होना है, सब्सिडी एक्सपेंडिचर को आपने कमिटेड एक्सपेंडिचर में डाल रखा है, आपका रेवेन्यू डेफिसिट इससे बढ़ता है, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आपकी सब्सिडी आती है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में सब्सिडी मतलब कमिटेड एक्सपेंडिचर है, इसको आप कम भी नहीं कर पाओगे। तो कमिटेड एक्सपेंडिचर को कम नहीं करेंगे तो रेवेन्यू डेफिसिट आएगा। इसका ओवरऑल इंप्लीकेशन ये भी होगा कि कैपिटल अकाउंट का पैसा आपको रेवेन्यू अकाउंट में खर्च करना पड़ेगा, अगर आपका रेवेन्यू डेफिसिट ज्यादा रहेगा। और रेवेन्यू डेफिसिट ज्यादा होने में जो एक मेजर रोल प्ले कर रहा है वो आपकी सब्सिडी है ही। तो आप ऑलरेडी सब्सिडी, पहली बात तो बहुत ज्यादा दे रहे हो, इतना ज्यादा देने के बाद भी आपको पता है कि उसका जो इंटेंडेड बेनिफिट होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा ना। क्यों नहीं हो पा रहा? बिकॉज लीकेजेस है सिस्टम में, सिस्टम में इतने लीकेजेस है, नहीं होने चाहिए। इसके लिए आपको करप्ट प्रैक्टिस पे क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। करप्ट प्रैक्टिस पे कैसे ध्यान दोगे, आपने रेगुलेटरी बॉडी भी बना रखी है बट आपका प्रॉपर अप्रेजल नहीं हो रहा है। स्टेट्स की जो क्या बोलते हैं, कई सारे मोस्टली पॉलिटिशियन और एक ब्यूरोक्रेट्स के बीच में भी नेक्सस है, उस नेक्सस को भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, ये जो मेन इशू है, करप्शन एक बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, आप अगर अप्रेजल सिस्टम नहीं बनाओगे, स्ट्रिंजेंट अप्रेजल सिस्टम नहीं बनाओगे, एक स्ट्रिंजेंट ग्रेवियस रिड्रेसल मैकेनिज्म नहीं बनाओगे, तब तक ये इश्यूज क्या नहीं होने वाले, सॉल्व नहीं होने वाले। फिर ये हो जाता है कि मान लो आपके पास, आपने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में डाल रखा है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे एजेंसीज होनी चाहिए जो आपके क्या करें, ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाए। बट ये मैकेनिज्म जो है, ये बॉडी जो है, ये जो एजेंसीज हैं, इन एजेंसीज की जो वर्किंग कंडीशंस है, इन एजेंसीज के अंडर जो एप्लीकेंट्स जा रहे हैं, उसमें जो काम हो रहा है, पहली बात एप्लीकेंट्स आर रिलक्टेंट टू गो देयर बिकॉज दे नो दैट देयर इज रेड टेपिज्म इज देयर, and when there is a red tapism it is very difficult for the common man to get justice, and justice delays, justice denied, you know, okay, it takes time, it takes years। ठीक है, 10,000 रुपए का केस है और years लग जाएंगे उसमें, तो what sense does it make? okay, justice delay, justice denied। तो डिले नहीं करना है, डिले करोगे तो डिनाइड ही हो गया वो एक तरीके से। तो ये वाली चीज पे हमको क्या करना है, ध्यान देना है। ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट पे भी थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कैसे होती है ना, कि जैसे आपका जो ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट है, आपको पता है कि ये एक एग्जाम्पल के लिए मैं इसको क्या बोलते हैं, कोवर्टली बता रहा हूँ। एग्जाम्पल के लिए, दिल्ली से कैलकाटा जाना है, दिल्ली से कैलकाटा जाना है, और आपको पता है कि दिल्ली से कैलकाटा में भी आपको किसी पर्सन से मिलना है या किसी पर्सन को कुछ गुड्स प्रोवाइड करना है, और दिल्ली से आपको लखनऊ में भी कुछ पर्सन को गुड्स प्रोवाइड करना है। ठीक है, आपको पता है। तो एग्जाम्पल के लिए इनएफिशिएंट मैकेनिज्म ये हो गया कि दिल्ली से कैलकाटा भी गुड्स ले जाने हैं, तो सबसे पहले दिल्ली से गुड्स को कहाँ भेजा, कैलकाटा भेजा। ठीक है, फिर कैलकाटा भेज के आप वापस कहाँ आ गए, दिल्ली आ गए।
फिर लखनऊ भी भेजना था, तो दिल्ली आए, फिर दिल्ली से लखनऊ गए और लखनऊ से फिर दिल्ली आए। समझ रहे हो, ये एक ऑपरेशन हुआ। इस एक ऑपरेशन में आपने क्या किया, आपको शुरू में ही पता था कि आपको कैलकाटा भी भेजना है और लखनऊ भी भेजना है, तो आप दिल्ली से पहले लखनऊ जाते हैं, लखनऊ से कैलकाटा जाते हैं और कैलकाटा से दिल्ली आ जाते हैं। तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी थी वो नजर आती कि आपने लखनऊ को कवर किया, कैलकाटा गए और दिल्ली आ गए। समझ में आ रहा है? बट आपने क्या किया, सबसे पहले कैलकाटा गए, कैलकाटा से वापस दिल्ली आए, वापस दिल्ली आके फिर लखनऊ गए, फिर लखनऊ से दिल्ली आ गए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट इज आई एम ट्राइंग टू से कि ये ऑर्गेनाइजेशनल इनएफिशिएंसी है कहीं ना कहीं, ठीक है। और इस वजह से जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है वो बढ़ जाता है। मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया है, ठीक है। सिनर्जी जब नहीं होती है तो डिपार्टमेंट से एफिशिएंट वर्किंग नहीं निकल पाती, यही प्रॉब्लम है, ठीक है। और खास तौर पे ट्रांसपोर्टेशन एक इंपॉर्टेंट चीज है जो इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। सेकंड चीज हमने देखी थी, आपके पास जो वेयर हाउसेस है, वेयर हाउसेस में अवेलेबिलिटी, आपकी जितनी वेयर हाउसेस की अवेलेबिलिटी, जितनी कैपेसिटी होगी वो क्या है, बहुत कम है एज कंपेयर टू योर अवेलेबिलिटी ऑफ और योर वट एवर यूर प्रोक्यूरिंग। आपका प्रोक्यूरमेंट ज्यादा है और आपके पास अवेलेबिलिटी उसको रखने की नहीं है, तो वेस्टेज हो रहा है, ठीक है। तो खरीद भी रहे हो उसको और वेस्ट भी हो रहा है, ये भी दिक्कत है, इससे भी नुकसान ही हो रहा है पब्लिक एक्सचेकर को। तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स है ना, इन प्रॉब्लम्स पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती, ये सिनर्जी से ही काम होगा, ठीक है। सिनर्जी से होगा सेंट्रल और स्टेट की। और कहीं ना कहीं क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे चीजें चली जाती है तो वहां पे थोड़ा सा दिक्कत तो आता है, ठीक है। कोई स्टेट इफेक्टिवली हैंडल कर रहा है, कोई स्टेट उसमें रिलक्टेंट है, इंटरेस्ट रेट ही ले रहा है, ठीक है। पढ़ना है? सर तो जहाँ पे सेंटर और स्टेट दोनों की मतलब मान लीजिए सेम है, जैसे मान लीजिए बीजेपी का ही सरकार है जैसे यूपी का, तो वो सब जगह पे क्या कम होने का चांस है ऐसा? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देखो, ये जो एक ये है कि थोड़ी कॉपरेशन बढ़ जाता है दोनों में। अगर सेंट्रल में और स्टेट में सेम पार्टी है पावर में, तो एक कॉपरेशन जो है दोनों में बढ़ जाता है, बट नॉट कंपल्सरी कि हमेशा बढ़ा रहे या हमेशा, क्योंकि पॉलिटिकल डिफरेंसेस तो वहां भी होते हैं, क्योंकि स्टेट्स के बीच में कुछ पैरोकियल पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं, उनके कुछ अलग इंटरेस्ट होते हैं, पैरोकियल इंटरेस्ट होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग इंटरेस्ट होते हैं, ठीक है। वो है कि सेम पार्टी रहेगी तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है कि चीजें थोड़ी स्मूथली हो जाए। फॉर एग्जाम्पल आप अभी देखेंगे कि कर्नाटका में अभी करंटली बीजेपी गवर्नमेंट है, ठीक है, बीजेपी इज इन पावर। महाराष्ट्र में भी अभी आप देखेंगे बीजेपी का ही कोलिशन जो है वो पावर में है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट अभी बीजेपी का कोलिशन पावर में है। बट अभी जो बेलगावी वाला इशू चल रहा है, जिसमें कर्नाटक ने बेलगावी को अपना बता रखा है, आई थिंक है तो भी कर्नाटक के ही फोल्ड में है वो, लास्ट टाइम जो डिसीजन आया था। महाराष्ट्र क्लेम करता है कि नहीं, बेलगावी मराठी स्पीकिंग है तो दे दैट शुड बी आवर पार्ट। तो दोनों स्टेट्स के बीच में बाउंड्री को लेकर क्या है, डिस्प्यूट है। दोनों जगह बीजेपी की ही गवर्नमेंट है, ठीक है। ऐसा देखा जाए तो कोलिशन महाराष्ट्र में कोलिशन है, बट वो बीजेपी का ही कोलिशन है। तो कोलिशन है, कर्नाटका में पावर में है, दोनों स्टेट्स के बीच में बाउंड्री डिस्प्यूट है, सेंट्रल में बीजेपी की गवर्नमेंट है, बट स्टिल यहाँ पे चीजें स्मूथली नहीं जा रही है, ठीक है। दोनों स्टेट्स ने अपने अपने असेंबलीज में जो है वो एक रिजोल्यूशन पास कर दिया है कि ये हमारा पार्ट है, ठीक है अभी कर्नाटका के फोल्ड में, बट महाराष्ट्र इज क्लेमिंग कि वो हमारे पास होना चाहिए। तो स्टेट्स के बीच में इशू चल रहा है ना, तो इट्स नॉट कंपल्सरी ऑलवेज, बिकॉज इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं, ठीक है। हमेशा जरूरी नहीं है कि चीजें स्मूथली ही चली जाए, ठीक है। हाँ, वो होता है कि अगर आप इफ समवन इज रूलिंग विद द आयरन हैंड, ओके, if central dispensation is very strong and the party structure is very strong and they very strong in the sense कि कहीं ना कहीं एक यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है अगर, तो चीजें अलग हो सकती है, ठीक है। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के फायदे हैं, तो फायदे तो नहीं है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के, बट कहीं ना कहीं अगर एक सेंटर से पार्टी के अंदर भी अगर पावर एक ही सेंटर से एक पॉइंट से फ्लो हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसके भी नुकसान है, बिकॉज उसमें ऑटोक्रेटिक होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। पावर जितना डिवॉल्व रहे ना, उतनी चीजें बेटर रहती है, बिकॉज डेमोक्रेटिक रहेगा तो उसके नुकसान भी है पर फायदे भी है। अदरवाइज क्योंकि पावर बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रहेगी तो पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली, उसकी भी दिक्कत है।
मार्क ट्वेन ने ये बात कही, ठीक है, कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। इट्स नॉट कंपल्सरी कि ऐसा हो, बट एक फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग है कि ज्यादा पावर मिलती है और एब्सोल्यूट पावर मिलती है तो इंसान के करप्ट होने की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, ठीक है। इट्स वन वे ऑफ थिंकिंग। तो नॉट कंपल्सरी कि सेम पार्टी की अगर गवर्नमेंट स्टेट में है और सेंट्रल में भी है तो सिनर्जी बनी रहेगी, कभी कभी दिक्कतें आती है, ठीक है। अब बताओ आगे पढ़ना है बफर स्टॉक को या कल पढ़े? कल पढ़ते हैं सर। वेरी गुड, यूनुस से मुझे यही अपेक्षा थी। हेलो सर। हाँ जी। सर आपको क्या लगता है 2030 तक ये जो पीडीएस वाला प्रॉब्लम है ये कितना था, मतलब सोल्यूशन जैसे आप प्रेजेंट सिनेरियो को देखें तो ये जो प्रॉब्लम है मिनिमाइज होने का क्या कितना चांसेस है? मतलब ये जो बोला ना 30 तक। हाँ 2030 तक जैसे आप प्रेजेंट तो में काम नहीं, करते हैं। ये लॉन्ग टर्म है। एक्चुअली क्या है ना कि बहुत क्या धीरे धीरे ना चीजें पॉलिटिकल फॉर्म ले लेती है, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल कि जब आप 1947 के बाद देखेंगे कि जो रिजर्वेशन एक इनेबलिंग प्रोविजन था, ठीक है, फॉर 10 years इनिशियली दे स्टार्टेड द रिजर्वेशन, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थिंग्स बिकम पॉलिटिकल, okay, political parties start seeing their interest, okay, their vested interest is there and they're always ready. People are, laymen don't understand the things in very technical manner. They don't understand what are the main reason behind the affirmative action and positive discrimination, okay, they don't understand these things. But politicians are always there. They they used to make the subjective realization of the objective reality. The objective reality is it is enabling provision, but the leader or the political parties come into picture and they just make the subjective realization of the objective reality. Objective reality is that it is an enabling provision, but parties are coming into picture and they are mending the facts and they are uh, just to try to take the advantage of these provisions, okay, and they make it a political issue. So in India, when things become political, and it's very difficult to resolve them because you know India have very diverse party structure. Okay, India is very diverse in terms of religion, caste, and sections of people. Okay, and sects are there. So when things become political, it's very difficult to cater with them. So like MSP and all these things, initially it is a humanitarian point, like humanitarian issue, because people, government is going in the direction of food security. People need food for their survival. Okay. Now today, there's so many people who are taking benefit of this. Almost 70% of population is taking benefit. So when government will started rationalizing now, then that will become political issue. Okay. That will become political issue, and definitely um, whoever will do this, okay, irrespective of the party in power, whoever will do this, the opposition will make issue of it. Okay, opposition will make issue. That is why you need the gradual reduction. Okay, you need to do the gradual reduction, and it will take time. Like 2030 is a very very near. It take at least 30 years if you will start gradually reducing the these provisions and all these things. Okay. The reduction in the beneficiaries I'm talking about, okay, and other like administrative things and the corruption and all these are also subjective things कि कब वो खत्म होगी कब नहीं होगी, ठीक है, but बाकी जो reduction है beneficiaries का वो किया जा सकता है. Rationalization, definitely rationalization is the need of the hour. Okay sir, Sahrab. Yes sir. All of you must read the newspapers. Okay, newspaper रोज पढ़ें. Definitely you will get good articles. फूड सिक्योरिटी पे भी आर्टिकल्स आते रहते हैं. ये क्या अब ये बेसिक्स कंप्लीट होगा ना तो आर्टिकल्स पढ़िए आप. आर्टिकल्स में आपको न्यू इन्फॉर्मेशन मिलेगी, गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में भी पता चलेगा, जो एक्सपर्ट होगा उसका इंसाइट मिलेगा. ओके चलिए, ओके देन दैट्स इट फॉर टुडे. कल हमारा लास्ट लेक्चर होगा एग्रीकल्चर पे. ओके, आफ्टर दैट हम पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ेंगे.
Okay, sir. Anything else? कोई कुछ पूछना चाहता है? पूछें? नहीं। ओके, सर ये स्लाइड थोड़ा अपलोड कर दें। स्लाइड अपलोड कर दें। अब मैं स्लाइड को आज नहीं कल अपलोड करें, चलेगा? कल ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद करें। ओके, मैं ट्राई करूंगा, आज कर दूंगा रात पे, नहीं तो फिर कल तो हो नहीं है। ओके सर इकोनॉमिक्स का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कब से स्टार्ट होगा? आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वंस वी फिनिश द सिलेबस। ओके, मतलब अब आपके ज्यादा लेक्चर्स नहीं बचे हैं, अब आपके इकोनॉमिक्स में यस सर जितना भी मतलब पढ़ाया गया है ना इकोनॉमिक्स में, उसके जो मेन आंसर है वो अगर अवेलेबल हो जाता उतने में ही जितना पढ़ा गया। मेंस के मेंस क्वेश्चंस, के क्वेश्चन, यस सर, यू नीड क्वेश्चंस और यू नीड आंसर्स? क्वेश्चन चाहिए सर, आंसर्स तो हम The questions. ओके ओके ओके, हाँ क्वेश्चंस मैं उनको कहूंगा मैनेजमेंट को, दे विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू। ओके, हम लोग प्रीलिम्स का भी थोड़ा Thank you, प्रैक्टिस sir. करेंगे, प्रीलिम्स आ रहा है। ठीक है, ओके देन टेक केयर, गुड नाइट, सर गुड नाइट। कीप स्टडिंग। Thank you, sir. Good night. Thank you, sir. Good night.